मेरे हिसाब से हर बंदे को अपना रोड मैप लाइफ का पता होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज इन आवर एंटायर सिस्टम, वेदर यू आर अ रिक्शा वाला किड और एन अंबानीज किड, वी डोंट टीच सम बेसिक फंडामेंटल्स। कोई आज समझाता है कि सक्सेशन प्लान कैसे होना चाहिए बच्चों को व्हेन दे आर किड्स? आपको पता है कि अगर एक इतना सा पत्थर पहन के आप कहते हो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तो आपके घरों में तो यहाँ पे पूरे घर में पत्थर लगा हुआ है। लाइफ को जेपरडाइज कर रहे हो, अगले का बिजनेस जेपरडाइज कर रहे हो, अगले की हेल्थ जेपरडाइज कर रहे हो, अगले का नेक्स्ट जीन पूल जेपरडाइज कर रहे हो। सो आप कहीं अपने कार्मिक सिस्टम को भी तो क्रिएट कर रहे हो, विच इज रॉन्ग। All these things are related to Vastu. And how did you end up in Vastu? My first exposure to Vastu was in 1995. That's way back. Yeah. Yes, or 31 years back. And first 10 to 11 years, I was doing it, but not believing it. The interpretation of basic common sense, linking it with religion, creating fear, creating uncertainty is all a money making machine. This thing can only be sorted out by the creative people who are designing, making your homes or making products. लाइक किचन वाला है वो, या पत्थर बेच रहा है, उसको थोड़ा पता है क्या है। अगर आपने उसको गलत जगह पे गलत चीज़ लगा दी तो उसके रेपरकशंस यू कांट इवन इमेजिन द रेपरकशंस हैं। डेवलपर लाइक on the face of it they say we don't agree, but all their projects are 100% compliant. They have created the brand above this, so they don't need to market this. वो customers के लिए negative है, के लिए profitable है। But अगर clients है वास्तु compliant है तो ये तो उनके customers के लिए positive चीज़ हुई ना? No. With over 3 decades of experience in luxury design, construction, and manufacturing, Mr. Harmeet Singh has led more than 1,500 projects across India and international markets, renowned for blending luxury spaces with wellness principles rooted in alternative sciences. He brings a unique perspective on creating environments that are both sophisticated and deeply holistic. In this podcast, I will like to say a few things very forthright, but I can't name them because of my personal connections there. Abhi ek I've been instrumental in many gurudwaras. I'm redoing designing a gurudwara साहब, ठीक है। अब वो मेरे पास आए, वो कहते यार आप आए हो, आपने पग नहीं बनी, ऐसे नहीं बनी, It's a very important thing to ठीक है या थोड़ा या I said yes, but is that depicting whether I am a true Sikh or not? What about your deeds? मैंने कहा यहाँ पे रोड पे अभी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा ना, सारे जने भाग जाएंगे, और मैं अकेला ही होऊंगा, उस बंदे को उठा के लेके जाऊंगा, बेशक मेरी कपड़ी खराब हो रही है या मेरी बेस्ट कार खराब हो रही है। आई एम द पर्सन विल बी लीस्ट बॉदर्ड। सो मैंने कहा द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन इज डिफरेंट, सो दैट इज व्हाई आई एम न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन्स। but how do you think कि religion plays इन सोशल वर्क? जैसे हमारे रिलीजन में सिखिज्म में कि दसवंत निकालना होता है और वो बचपन से बच्चों में एम्बेड करा गया है कि दसवंत निकालो निकालो निकालो। तो वो बच्चा जब ग्रो अप ही उसी एटीट्यूड से हुआ है तो वो अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन में जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि फर्स्ट all religions are same, leading to one thing. एग्री। I being a Sikh, I am 100% convinced on what the gurus have taught. But the biggest rider is how how pure are we? What is the interpretation of that purity? And what is the intent? Next big thing in the whole world, mark my words, you can write the date, is going to be how do you sell energy? Energy is not the solar or luck, it's the aura that you create. ओके। If you shake hands, it's an energy. राइट। Like you said कि दसवंत निकालना है, दसवंत निकालना तो ठीक है, लेकिन दसवंत निकालने के बाद you come out of the gurdwara or the your house and start abusing, यस दैट्स रॉन्ग। and आप एक तरफ दसवंत निकाल रहे हो और दूसरे आप गरीब से बिक्का भी दसवंत अपने आप छीन रहे हो, because you're not giving your right due. राइट। So the interpretation of any religious nomenclature has been grossly
maneuvered to matter of convenience. We've created a do's and don'ts. अगर आप ये पहनते हो तो ठीक हो, बेशक लाइफ में बाकी सारे काम गलत करो। नहीं। आप सुबह उठ के गुरुद्वारे जाते हो या मंदिर जाते हो या अपने चर्च जाते हो तो आप ठीक हो, जो नहीं जाता वो खराब है। आप वहाँ जाके कितने गलत काम करते हो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सो these things cannot be debated because I mean I'll ruffle feathers with a lot of people in the industry. बट देयर आर गुड एंड बैड, लाइक रतन टाटा जी थे। No, that's what I say. But we need look at the अब 140 करोड़ की जनता में अगर अगर 1 करोड़ भी ठीक है तब भी कुछ नहीं है। We need at least 10-20% people. So we are looking at 14-15 crores people who are at least thinking alike. बट डोंट यू थिंक दैट्स लाइक रिलाई ऑन द अपब्रिंगिंग यू गेट? सी देखो अपब्रिंगिंग एक स्टेज के बाद रेलेवेंस खत्म हो जाता है। Yes, it's a very important thing. Your parents, your environment, your legacy that you get is very important. But उसको carry forward करना तो आपकी interpretation। बट दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग, दैट हाउ यू आर टॉट टू मेंटेन दैट लेगेसी। देखो उसमें उसमें I will not go into that. मेरे हिसाब से हर बंदे को अपना रोड मैप लाइफ का पता होना चाहिए। What his parents or his legacy is he's getting, he should be well aware. सबसे बड़ी problem is in our entire system, whether you are a rickshaw wala's kid or an Ambani's kid, we don't teach some basic fundamentals. कोई आज समझाता है कि सक्सेशन प्लान कैसे होना चाहिए बच्चों को when they're kids? नहीं। आज लटियंस में आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द एंटायर इंडिया, लटियंस में 50% प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है बिकॉज देयर पेरेंट्स डिडंट डू अ सक्सेशन प्लान ऑफ हाउ टू। But those kind of conversations are very hard for an Indian household. Like, सी somebody has to change the pattern. yeah, आप I कैसे agree. कह रहे हो आज पिछले 10 साल में रिक्शे वाला भी दो मोबाइल लेता है, पैटर्न चेंज हुआ ना। So the big people, the people who have the money, who have the resources, people in the social format, including celebrities or people who've done well in their industry, should be more vocal on these points instead of making ads or instead of doing some game shows. Why can't they contribute here, where they are adding to the society? Money they have earned. Money they have earned. What do you do with the surplus? Like you mentioned, Ratan Tata, there are a lot of them. I'm not denying that, but look at the population and ratio. तो अगर आपका बॉटल फुल है, उसमें एक ड्रॉप डालोगे तो उतना ही रंग चेंज होगा ना जितना एक ड्रॉप है। So that is the whole agenda, and that's I've been very focused and bully on this point that how do we do this interpretation because people say single-handedly कुछ नहीं हो सकता, but I think I've been working for more than 3.5 decades or maybe more. I was working even when I was studying, just out of the kick to learn. So हमने इतने लोगों को चेंज करा है कोर्स लाइफ का by positive what see I'm not challenging anybody. आप जो मर्जी बिजनेस करो, जो मर्जी कमाओ, you do whatever you want to do, but what do you contribute of the strengths that you have? but again, you were mentioning destiny before, that किसी को अपनी किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा. But then again, you were exposed to so much stuff at such early age because you get out of your comfort zone. मतलब किसी का comfort zone नहीं होता है कि लोगों से जाके मैं मिलूँ. और तो you changed, मतलब डेस्टिनी हर चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती. नहीं लाइक आई सेड, चलो आपकी बात मैंने मान ली, मैंने एक्सपोज करा, सपोज किसी को एक्सपोजर नहीं मिलता, कांट देयर बी अ प्लान बी, कांट देयर बी अ प्लेटफॉर्म, कांट देयर बी एन एक्सचेंज प्रोग्राम्स इन schools, colleges and even in offices, in corporates where people are ready to brainstorm. They can go and party the whole day, whole night, they can do travel the whole day, whole night, but why can't there be platforms? And these things have to see the people who are running the show have to think on these lines. एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेट है या एक पॉलिटिकल लीडर है, दे आर ओनली ट्राइंग टू वर्क जहां उनको सोशल और मॉनेटरी गेन है या एक वोट बैंक है. व्हाई कांट दे डू समथिंग ऑन फॉर द कॉमन प्लेटफॉर्म? So many sports people come out of remote areas you've not even heard of.
The same way, so many entrepreneurs can come out of those zones. Studying only will not produce entrepreneurs. Study only will not produce content, will not produce good-minded youngsters. It is an interaction in the right direction, in the right perspective, and people who've contributed, like अगर फैशन में किसी ने contribute करा, फूड में करा, लाइफस्टाइल में करा, आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स, hundreds of लाइन, मेडिकल साइंस में जिन लोगों ने अच्छी चीज़ें अचीव करी, unfortunately they don't contribute in the right sense that they need to. They want to monetize that. They want to monetize their, अगर मैं आज अच्छा डॉक्टर बन गया, मुझे आगे पढ़ाना, मैं कहूँगा मैं इंस्टीट्यूट खोल लूँगा, पैसे कमाऊँगा. मैंने आज आईआईटी का, I have certain, because I keep reading, people who opened, these training centers where they have coaching and all. The only thing which has happened abhi last, there are 3 kids who've gone into the mass market learning at a very reasonable cost. But और कौन सी fraternity ऐसे जिसमें कि people want to give what they have learned or what from where they've made money as a tool. एक अच्छा बिल्डर है, वो बिल्डर कहाँ से बना, क्या बना, उसमें मैं नहीं जा रहा. But tell me, what is he contributing to the society in terms of thousands and thousands of people, or maybe lakhs, have got into this brokerage business, making Right. YouTube and all. Right. But what are they doing? Right. After earning money. चलो, like money एक different chapter है. Money is destiny driven. You cannot, अगर आपको रात को 2 बजे RTGS आना है, आप सोते सोते आपको पैसे मिल जाएंगे, और अगर नहीं आने तो नहीं मिलेंगे. कोई भी दुनिया का बंदा उसको चेंज नहीं कर सकता फॉर्मूला को. बट ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इसमें होप छोड़ दो, यू डोंट ट्राई, यू कीप ट्राइंग इट. बट what is the ultimate we are trying? Nobody knows where they're going. And people who achieved or arrived somewhere, they have created barriers where they are not letting the people who have the energy to upgrade themselves. आज कोई सपोज एक म्यूजियम बना रहे हैं, एक एक्स, विदाउट नेमिंग देम. अब वहाँ पे एक यंग टैलेंटेड किड है जो एनआईडी से बैठा हुआ है. ही इज मे बी फाइनेंशियली नॉट दैट गुड, बट ही इज वेरी क्रिएटिव, वेरी इंटेलेक्ट. देर आर नो प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन, जैसे टाटा करता था, वो यंगस्टर्स को, आई रिमेंबर बीइंग एज अ किड, वो फुटबॉलर्स को पिक करते थे स्पोर्ट्स में, एकेडमी बना के ग्रो करते थे. आज एक भी ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म बना लो, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बन गई, they are only doing those exchange programs which are adding credibility to the brand of the university, Right. not to the content. How do you make people life better? मतलब वो बहुत important है. नहीं, it's not bad. See, एक बात बताओ, आपकी एक चीज में मास्टरी है, अगर मैंने उस मास्टरी को, I have to make money, that's very clear, there is no free lunches, I'll make money because that's what I'm supposed to do. But if I'm making money, I can have 5%, 1%, 10% time devoted to or contribute to people who want to become that, or at least teaching them the right process. अब ये बात अभी हमने बिफोर भी ऑफिशियली स्टार्टेड, आई वाज डिस्कसिंग, भाई आप एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, एक 3 साल का बेसिक ग्रेजुएशन कोर्स करता है, मेडिकल लाइन में तो 8-9 साल लग जाते हैं. अब जो वो सीखते हैं, आप आज ऑनलाइन यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे वो 3 दिन का कोर्स करके, 1 हफ्ते का कोर्स करके, व्हाट आर यू डूइंग? आपको टैग तो मिल जाता है, बिकॉज सो कॉल्ड दीज इंस्टीट्यूट्स गिव यू अ टैग. बट जो आप उसको ट्रांसलेट करें, सपोज एक डॉक्टर है, आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. एक ट्रेन डॉक्टर है जिसने अपना 5 साल 8 साल लगाए, और वो, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू गो टू, आपको फ्रैक्चर ही है सपोज, आप जाके वो आपका प्लास्टर लगाता है. और एक है जिसने यूट्यूब पे 1 हफ्ते का कोर्स करा है, वो कह रहा है मैं प्लास्टर लगा के आपको ठीक कर दूंगा. आप I'll go to a more credible source. सो और आज की डेट में these fringe businesses making reels, and there's nothing wrong, I'm not debating that, I'm only saying there's a way to do it. But look at the chaos they are going to create in future.
अगर मेरी मॉरल ड्यूटी है, अगर मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, अगर मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैं एक अच्छा घर बना रहा हूँ, फैक्ट्री बना रहा हूँ, इंडस्ट्री बना रहा हूँ, टाउनशिप बना रहा हूँ, अगर मैंने वो गलत डिज़ाइन करी, आई एम jeopardizing thousands and thousands of people and their future generations. मुझे so this is speaking little openly and brashly, but what are the people doing? What are the designers doing? What are the architects doing? It's become a number game. मैं 10 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं 100 कर रहा हूँ, मैं 500 कर रहा हूँ. ठीक है बाबा, यू मेक मनी. नो, आई एम नॉट अगेंस्ट मेकिंग मनी, बट आप अच्छी चीज बनाने में अगले की लाइफ को जेपरडाइज कर रहे हो, अगले का बिजनेस जेपरडाइज कर रहे हो, अगले की हेल्थ जेपरडाइज कर रहे हो, अगले का नेक्स्ट जीन पूल जेपरडाइज कर रहे हो. सो आप कहीं अपने कार्मिक सिस्टम को भी तो क्रिएट कर रहे हो, विच इज रॉन्ग. Right. So all are these things, like all these things are related to Vastu design. See, there is nothing as Vastu or no. Everything existed thousands of years पहले भी. If there is a solar system, if there is, I'm asking you, if there is a solar system, if there is physics, if there is biology, if there is chemistry, then Vastu is also equally important, astrology is also equally, graphology, numerology, palmistry, everything is important. It's an interpretation, like there are multiple gods, the same way there are multiple interpretations of alternative sciences. But then why it is not taught so aggressively in schools, like the solar system itself? No, I was taught about the solar system. solar system was taught in physics, but unfortunately, uski see, we are only taught to learn, to mug up, to get numbers. We are not taught the process. You understand? आज एक बात बताओ, मैं एक बहुत बेसिक क्वेश्चन करता हूँ, and in this entire thing, I am not against any science, I am not against any religion. What I'm trying to say is everything is possible. It is only the question of how do you balance these things. आज आप अगर एक, अब आप सपोज आप अपनी जन्म पत्री बनवाने जाते हो किसी से, मैंने क्या बनवाई था? मैंने चलो बनवाई नहीं. किसी ने बनवाई होगी, वो क्या करता है, अपना नाम बताता है, हाँ. उसके बाद कहता है आप कहाँ पैदा हुए, टाइम. डेट टाइम बताता है. ठीक है, मैं नाम का डिस्कशन बाद में करूंगा. जब वो डेट पूछता है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ पूछता है. तो प्लेस ऑफ बर्थ क्यों पूछता है? आई डोंट नो. तो प्लेस ऑफ बर्थ इसलिए पूछता है कि आप जिस जगह पे पैदा हुए, उस जगह की ज्योग्राफिक लोकेशन से वो मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करता है. ओके. नहीं तो जगह पूछने का कोई रेलेवेंस ही नहीं है. तो एवरीवेयर यू सेट और यू बॉर्न और इन अ हॉस्पिटल, you get the magnetic field, means longitude latitude of that place. So what is longitude latitude is basic science. So इसमें से कौन सा रिलीजन इन्वॉल्व है, इसमें कौन सी गिमिक इन्वॉल्व है? But तो इंटरप्रिटेशन करो. the problem is there's so much forgery in this activity, so people have automatically untrusted this. See, इसका तो मेरे पास एक ही सोल्यूशन है, एक ही लाइन है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. आप डराओगे तो डरेंगे, और डरने के पैसे हैं. ठीक है. दूसरा, अगर आप इन चीज़ों को, बेसिक फंडामेंटल को समझ लेते हो, तो आपको, आई वोंट से ज़रूरत नहीं है, आपका 70-80% काम बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हो जाएगा. अब सपोज एग्जांपल आई विल गिव यू. सपोज इफ यू गो टू ओल्ड, जो आज से 100 साल 1000 साल पहले चीज़ें बनी, लुक एट द टेम्पल्स मेड इन साउथ इंडिया. हम अपनी बात करते हैं, लुक एट हरमंदिर साहब, लुक एट बंगला साहब, लुक एट वैटिकन, look at all these places worldwide, not only Tirupati Balaji, Hanuman Mandir here. If you go, they are all energy centers. Why are they energy centers? Because by default, they are aligned to the solar system. Okay. उसमें अब 1000 साल पहले किसी को तब भी सूरज उगता था, तब भी प्लैनेट्स चलते थे, तब भी अर्थ के अराउंड घूमते थे. ठीक है, तो वो फॉर्मूला तब भी था, आज भी है. हमने उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज कर दी है. अब क्या होता है, यहाँ पे लोग जल्दी मानते हैं अगर हम उसको रिलीजियस से लिंक करते हैं. राइट. मेरा भी पहला थॉट यही गया कि जैसे कोई गुरुद्वारा अगर बन रहा है, तो आई थिंक वो लोग ये नहीं, सोलर सिस्टम प्लैनेटरी इश्यूज नहीं देखेंगे. उस टाइम भी तो जब बंदे ट्रैवल करते थे, आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, वो शिप कैसे चलती थी? वो देखते थे
कि सन कहाँ से उग रहा है, अब मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मैं ईस्ट में जाना है। नॉर्थ स्टार है। पोल स्टार था, नॉर्थ स्टार था, या बेसिक चीज़ें थी। सो सो इट वाज ऑलवेज देयर। हमने उसको नाम न्यू दे दिया है, न्यू इंटरप्रिटेशन कर दी है, और ताकि लोग माने, उसको रिलीजियस सिस्टम से लिंक कर दिया। अगर रिलीजियस सिस्टम से लिंक कर दिया तो हम लंदन में भी वैलिड है, थाईलैंड में भी वैलिड है। हम आई डू कंसल्टेंसी ऑल अक्रॉस द ग्लोब, वो सेशल में भी वैलिड है, दुबई में भी वैलिड है। अगर वो रिलीजन सिस्टम है तो इंडिया में ही वैलिड होना चाहिए, वहाँ क्यों नहीं वैलिड होता? करेक्ट। एस्ट्रोलॉजी तो वर्ल्ड वाइड है। नो, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, दे ऑल वर्ल्ड वाइड, बिकॉज दे आर बेसिक साइंसेस। हमने मैटर ऑफ कन्वीनियंस के लिए इंटरप्रिटेशन चेंज कर दिया। एंड हाउ डू वी सॉल्व इट? सॉल्व इज ओनली थ्रू कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब सपोज मेरे पास कोई रियल एस्टेट का बंदा आता है, आप उसको हवा बना के उसको बोलते हैं, अरे देखो, देयर इज अनदर चैलेंज इन दिस। वी, the medical science always works on, they never work on a preventive form of medication. वो कहते हैं कि बंदा, एक इंडस्ट्री चल रही है पूरे वर्ल्ड में जो कहती है बंदा बीमार हो, और दूसरी इंडस्ट्री कहती है हम उसको ठीक करेंगे, हम दवाई बनाएंगे। द सेम वे दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो वर्किंग। कि बंदे को कोई प्रॉब्लम आए उसके बाद हम सॉल्व। अब प्रॉब्लम है, इससे सबसे बड़ा, आई ब्लेम द प्रोफेशनल। आई एम ऑल्सो प्रोफेशनल, आई एम पार्ट ऑफ इट। द ब्लेम द, आर्किटेक्चर एंड द बिल्डर। yeah, because for accruing more money and using less brain, they give wrong design. अच्छा डिजाइन बनाने के लिए मेहनत चाहिए, उनको पिंटरेस्ट से कॉपी करना है, उनको उनको एस्थेटिकली चीज चाहिए, गिमिकी, जो क्लाइंट कन्विंस हो जाए। उसमें आप आर्टिफिशियल मटेरियल यूज कर रहे हो, ओवर यूजेज ऑफ ग्लास कर रहे हो, ओवर यूजेज ऑफ मेटल कर रहे हो, यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर ऑल्सो ना। सो ये बहुत ज्यादा, यस, बट व्हाट, to cut it short, what I say, that if we can start motivating the youngsters in whatever field they are, not only in real estate. अब suppose आपको पता है कि अगर एक इतना सा पत्थर पहन के आप कहते हो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, तो आपके घरों में तो यहाँ पे पूरे घर में पत्थर लगा हुआ है, आई कैन से भी तो एनर्जी चेंज होनी चाहिए। राइट। मैं तो कुछ नहीं पहनता बट I'm giving you an example. हाँ राइट। होता है, बहुत लोग पहनते हैं। इसमें राइट और रॉन्ग कुछ नहीं है। इसमें ये है कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स कैसे हैं। आप खाली पैसे कमाने के, एक बात बताओ, जो अभी ओपन योर इंस्टाग्राम एंड जस्ट टाइप वास्तु कोर्सेज, यू विल हैव एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ देम। यू लुक एस्ट्रोलॉजी, यू विल हैव थाउजेंड्स ऑफ देम, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, palmistry. बट हाउ कैन अ वन 3 days कोर्स, 1 month कोर्स, और वो आगे आगे लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं, वो फटाफट ऐप बना के अपना पोर्टल भी खोल लेते हैं। They are making money. So look at the number of people they are going to destroy in future with wrong medication. Medication in the context, wrong information that they are. So it's a science which needs to be understood, explored, and physically dealt with. And how did you end up in Vastu? Learning about Vastu, how did you That- explore that? My first exposure to Vastu was in 1995. This way back. Yes, or 31 years back. And first 10 to 11 years, I was doing it, but not believing it. I think I'm in that zone. So, but then because of being a, what should I say, more scientific approach, more logical thought process I started experimenting. So 10 years I was, because our clients wanted it, मैं वहाँ से सीखी, hands on सीखी, zero book, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करते थे। 10 साल बिलीव नहीं करा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट 10 years एक्सपेरिमेंट करे कि जो सीखा उसको और रिफाइन कैसे कर सकते, हाउ टू मेक इट मोर प्योर। So 20 years gone, and next last 10 years to implement it. Implement it with purity now, so that result is 100% कुछ नहीं होता, 99%. So my way of working on these alternative sciences is preventive. ये आप एक बात बताओ, आप चीज़ पहले खराब
करके उसको कह रहे हो मैं ठीक कर दूंगा. Why can't you start and making it right from the day one? अब इसमें सबसे ज़्यादा रोल आता है आर्किटेक्ट्स का, डिज़ाइनर्स का, इंटीरियर डिज़ाइनर्स का, बिल्डर्स का, डेवलपर्स का. दे डोंट वांट टू टच दिस सब्जेक्ट बिकॉज उनको लगता है मेरा एफएआर कम हो गया, मेरा बिल्टअप एरिया कम हो गया, मेरा सुपर एरिया मुझे मोनेटाइज करना है. वो अपनी फाइनेंशियल गेन के चक्कर में there is again I will not if you go down the golf course road there are not one, there are multiple societies, and this is a physical research done, and I have proofs, evidences. There's a society, उसमें एक टावर में अगर 14 फ्लोर थे, all 14 floors have the same ailment in their house, in one member, family member, and it is loaded. It's got a good status, it's got a good name, it's a very posh area. So what are we doing? For क्या है, मनी की ग्रीड है ना. और मैंने पहले आपको पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बोला, मनी अगर आपकी किस्मत में लिखा है, दुनिया में कोई बंदा आपको आपसे ले नहीं सकता. तो सी जो डर वाला कॉन्सेप्ट है, जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इन एनी बिजनेस मॉडल, आज आप एक एफएमसीजी, आप एक कॉस्मेटिक लेते हो, अगर मैं उसमें डर का एलिमेंट इवॉल्व कर दूं कि अगर आप ये नहीं क्रीम लगाओगे तो ये हो जाएगा, सो इट हैज बिकम अ बिजनेस मॉडल. राइट. प्रिवेंटिव भी है कि मॉइस्चराइजर लगाओ तो आपकी स्किन ठीक रहेगी, बट देयर आर मोर कि Yes, so preventive is the best way forward. This is what I want to promote. This is what I want to tell the youngsters. कि भी आप अच्छा, एक्स्ट्रा क्या होता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है. अगर ये रोड हल्की सी कर्व कर रही है, तो इसमें हर घर अगर 5 डिग्री कर्व में चेंज हो रहा है अलाइनमेंट, तो उस आर्किटेक्ट को हर घर का नक्शा अलग बनाना पड़ेगा. वो मेहनत नहीं करके राजी. उसने अपने फिक्स्ड पैटर्न्स बनाए हुए हैं, 100 गज, 500 गज, 1000 गज फार्म हाउस के. वो कॉपी पेस्ट करता बिकॉज ही उसकी तरह जब तक वो वॉल्यूम गेम नहीं होगा, उसकी असेंबली लाइन नहीं बनेगी, उसको प्रॉफिट नहीं आएगा. दिमाग और टाइम तो उतना ही है ना. सो देर आर टू वेज ऑफ वर्किंग. वन इज working top of the pyramid, do one project, charge money worth 20 projects, and give value deliverance. One is to hell with everything. आप कॉपी पेस्ट करो, नंबर गेम है, नंबर से फिर वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट होता है जी मैं इतने प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इतने कर रहा हूँ, उससे और प्रोजेक्ट आते हैं. एंड या उनको मास डिलीवर कर सकते हो या लग्जरी इनको डिलीवर कर सकते हो. मास और लग्जरी भी सेकंड स्टेज है. फर्स्ट इज क्या, करेक्टनेस क्या है. अगर आपने एक ऐसा कौन सा, अब पुराने एक बात बताओ, यू देयर लॉट ऑफ पीपल हु वुड इवेंचुअली लिसन टू व्हाट वी आर टॉकिंग. व्हेन यू ट्रैवल विद इन दी सिटी, कोई बाहर से दिल्ली आया घूमने, आप बाहर गए दिल्ली से घूमने, आप यूरोप गए, इटली गए, फ्रांस गए, दुबई गए, आप कोई भी मॉन्यूमेंट को देखने जाते हो, कोई फोर्ट को देखने जाते हो, कोई हिस्टोरिक रेलेवेंस को देखने जाते हो, कोई मंदिर या मॉन्यूमेंट को देखने जाते हो, because there is some kind of energy there. You don't go and see glass buildings because they don't add value, they don't sensitize you. Coming back to, आपको हर चीज ह्यूमन टच वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं होना चाहिए. इफ देर इज नो ह्यूमन एलिमेंट, वी विल ऑल बी रोबोट्स. नो. नहीं तो कॉन्ट्रेक्टरी में सोच रहा था कि अगर दुबई जा रहे तो बुर्ज खलीफा भी तो देखते हैं. हाँ, बट उसमें भी तो डिजाइन एलिमेंट है, उसके अंदर की आपने देखी है डिटेलिंग. है. So it's a balance of, you know, the orientation of, you know how Dubai, Abu Dhabi is acquiring their land passes. That's again science. Even a developer like on the face of it, they say we don't agree, but all their projects are 100% compliant. But they don't. They have created the brand above this, so they don't need to market this. वो customers के लिए negative है, DLF के लिए profitable है. बट अगर डीएलएफ कंप्लायंस है, वास्तु कंप्लायंट है, तो ये तो उनके कस्टमर्स के लिए पॉजिटिव चीज़ हुई ना. No. 100 एकड़ compliance करा. See, Vastu is a double-edged sword, or any of these sciences is a double-edged sword. व्हाट डज दैट मीन? Double-edged means, if I was doing a project in Bangalore few years back, तो ये साउथ इंडिया में बहुत चलता है. तो अगर मुझे देखो, जो साइंस आपको रिजल्ट दे सकती है वो साइंस से आप नुकसान भी करवा सकते हो.
you doctors prescribed you 500 mg of a medicine, you start taking 1000 mg, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। और अगर आप 500 से 100 mg ले रहे हो और असर भी नहीं होगा लेकिन खा रहे हो, तो सेम वे इफ ये बेसिक लॉ है, ह्यूमन लॉ है एक लाइफ का। अगर कोई चीज़ आपको वैल्यू ऐड कर सकती है, वैल्यू घटा भी सकती है। सो इफ नाउ व्हाई आर पीपल, जो आर्किटेक्ट्स गलत डिज़ाइन कर रहे हैं, वो क्यों पैसे कमा रहे हैं? बिकॉज अगर सही बनाएगा तो ओनर प्रॉस्पर करेगा। ओनर हैज ऑलरेडी रीच्ड अ प्लेटफॉर्म वेयर ही हैज द मनी एंड द रिसोर्सेज टू मेक इट, सो ही इज एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्रस्टिंग। आप जैसे डॉक्टर को, आप ऑपरेशन थिएटर जाते हो, आप डॉक्टर को ही ट्रस्ट कर रहे हो ना कि वो आपको ठीक कर देगा, बेशक वो कुछ नहीं करे, हाथ लगा के वापस भेज दे, आपको यार उसने ऑपरेशन ठीक करे। और मोस्टली प्लेसिबो इफेक्ट ही होता है, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है। तो वो ट्रस्ट है ना राइट। कि अब आपका जो डिज़ाइनर है, जो जो बंदा आपका डिज़ाइन कर रहा है, आर्किटेक्ट है, व्हाटएवर XYZ, जो बंदा आपको, जिसने आपको ट्रस्ट था, आपने चूज करा, उसने एक कॉपी पेस्ट चीज बना, बिकॉज दिस इज अ कस्टमाइज थ्योरी। देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू एनी काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव साइंस। मैं वास्तु को नहीं लिंक करता, आई लुक एट मल्टीपल साइंसेस। इट्स अ मल्टीपल अप्रोच थ्योरी। व्हाट हैपेंस इज कि वन इज जेनरिक, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ड्रिप लगा लो, सलाइन लगा लो, आप ठीक हो जाओगे। तो एक बेसिक होती है, एक होती है कस्टमाइज्ड। सो any, because you are born on a certain date, on a certain time, and you have a certain name plays a very important role. That's again physics. I'll, in the course of the thing, I'll discuss that. So what happens is कि as an outsider, at least हमें basic ठीक करनी चाहिए, ताकि basic environment ठीक रहे, basic लोग ठीक रहे, basic health ठीक रहे। और एक होता है इंडिविजुअल। तो जब आपको इंडिविजुअल वो कराते हैं जो समझ चुके होते हैं या बहुत एक्सट्रीम भुगत चुके होते हैं, उनकी लर्निंग दो है, या दे बर्न देयर फिंगर्स, और दे आर वाइज, जनरली वाइज, दैट दे वांट टू हैव द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ। वो एडॉप्टिव होता है। जैसे मेरा क्लाइंट 1995 में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, 100 एकड़ के प्रोजेक्ट्स वास्तु कंप्लायंट कर रहा था 96 पे, जब तो ये नाम फेमस भी नहीं हुआ था। Though it's a theory which is thousands years of old, but it came into light because few people packaged it. Their intent was perfect to package it, but what happened? जो उन्होंने multiples produce करे, वो dangerous है, because they don't have the experience, they only have a stamp. Okay, 1 महीने का कोर्स करो, फिर एडवांस कोर्स करो, 2-3 महीने में पैकअप करके आप एक प्रोफेशनल बन जाते हो। And this is which affects your health, your relationship, your peace of mind, your money, growth, अल्टीमेटली ऑल ऑफ यू। and it also impacts your next gene pool. Okay. अगर आपने एक क्लाइंट है, उसका घर बनाया और बच्चे को गलत एस्पेक्ट या क्वाड्रेंट दे दिया, या दे आर in future having growth in their family, and if some ailments happen, so you're jeopardizing the next generation also. अब आपने फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाई, जैसे आप, when we were talking, you said you are good in marketing. You good in marketing, you have a certain energy. I put this energy in the wrong zone, so you are depleting your energy. या आई विल नॉट बी दैट एफिशिएंट देयर। So it's basic common sense. So the interpretation of basic common sense, linking it with religion, creating fear, creating uncertainty, is all a money making machine. This thing can only be sorted out by the creative people who are designing your homes, making your homes, or making products. Like किचन वाला है वो, या पत्थर बेच रहा है, उसको थोड़ा पता है क्या है। अगर आपने उसको गलत जगह पे गलत चीज लगा दी, तो उसके रेपरकशंस, यू कांट इवन इमेजिन द रेपरकशंस हैं। तो दैट इज वाई अगर डिजाइन स्टेज पे सारी चीजें अलाइन कर दी जाएं, तो दिस इज अ प्रिवेंटिव फॉर्म ऑफ, इज अ प्रिवेंटिव फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट को ग्रो करना बहुत जरूरी है। आज एक अपना एक बिजनेसमैन है, घर कौन बनाता है? व्हेन यू मेड सम मनी,
or you are an industrialist, or you are a good you corporate में आप growth कर रहे हो, you've earned some money, you want to make the second home, or the third is you want to make a home for investment, कि भी future generation को safeguard हो या जब मुझे need हो, because real estate has got uh, the meaning real attached. So this is the only physical thing that you can touch, own and tangible. बाकी abstract है. Gold. That is also real. But gold की quantifiable utility नहीं है. This is something that you own and use. Yes. So functionality is equally important. You can't, अगर आपने 10 किलो गोल्ड लेके रख दिया, आप क्या करोगे उसका? But if you have a खाली land parcel of 1 acre, you can just go and enjoy. Or if future में need भी, you can develop it, cut it, sell it, redeploy it. So वो एक अलग process of real estate. How real estate works. So if I am I am a Gen Z and I don't understand Vastu at all, if I'm buying buying my new house, like eventually, then what should I keep in mind? So you don't have to keep in mind, अगर आप, if you are not trained in that subject, best thing is to hire the best person in the trade. अगर मुझे आज अच्छा केस लड़ना है, तो मेरी कैपेसिटी अनुसार, मेरी फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड क्या चीज़ स्टेक पे है, आई हैव टू हैव द बेस्ट लॉयर. मुझे ऐसा लॉयर नहीं चुनना जो पता चले ओपोनेंट के साथ ही मिल जाए. सो कमिंग बैक मीन्स you have to have a reasonably good consultant who can guide you. इसमें कोई पैरामीटर नहीं है. Like I said, it's individual driven. One property may suit you, it may not suit me. So there are certain basic things that you need to look at it. अब वो क्या है ना, the permutation combinations are exponential, n number है. तो मैं कोई स्टेटमेंट दूं कि ये फेसिंग ठीक है, ये गलत है, वो ऐसा नहीं होगा. बिकॉज इवन अ 1 डिग्री शिफ्ट चेंजेस द डायनामिक्स. अब वो उसकी मेजरमेंट कौन ले रहा है वो भी डिपेंड्स. But there are so many options available right now in the market. How do I trust what is the best option? So that is the biggest thing. That's the biggest business opportunity for you. You should create that platform. Have right kind of people, syndicate them, and I can help you whatever time I have to create that platform, because that is what is missing. That's the business opportunity. That's the white space anyone can build. That's an unknown territory, a virgin territory where people don't know. मैंने अभी पहले भी बोला, आप एक जिसने 2 हफ्ते का कोर्स करा हो उससे ऑपरेशन कराओगे, कि जिसने 20 साल का एक्सपीरियंस उससे ऑपरेशन कराओगे? बेशक गलत कर दे, वो अलग बात है. सो इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल. एक फैशन डिज़ाइनर है, एक ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर है, वो 60 साल से एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, देन दे हैव अराइव्ड समवेयर. आई डोंट से दी वन ऑफ केसेस होते हैं, स्पार्क्स होते हैं, कि आपको वन ऑड केस मिल गया, बट यू कांट हैव एक्चुअल कंटेंट 1%, 99% आर्टिफिशियल कंटेंट. मीन आर्टिफिशियल मीन्स पीपल हु नॉट एक्सपोज टू इट. जिसको खुद ही 9, I mean, now this has to be either censored or what happens is कि 90% जो बंदे इन साइंसेस में जाते हैं, वो पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं. वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसको बिजनेस मॉडल में डेवलप कर लेते हैं. जैसे कि अगर मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं अपने लिए सीखा, हाँ. और देन once I've learned it, Yes, you then I start. started the business. But that's not right. 90% जो है, you open the platform and people who are doing very good are also part of this. तो व्हाट्स द वर्स्ट केस यू हैव सीन इन योर करियर कि वास्तु कंप्लायंट नहीं था जो, और उसकी वजह से इशू आया हो? बहुत है. आई कांट नेम दोज बिजनेस हाउसेस. एक आई कैन शेयर. वन वाज किंग, दैट वाज इन 2008-9. Yes. We were doing a project in Bangalore where I met him by default, and I said something, and I was really scared that मैं कि बोल कैसे दिया. But then I said नहीं, I go with my gut. I always work with my gut feeling. I told him that आपको ये डुबा देगी किंगफिशर. एक मैंने नाम लेता, बाकी बहुत हैं. There was another group
which when in I think a span of 8 to 10 years. Was there an issue with their house? See, I'll tell you, they like जैसे वो हमारे साथ आए, suppose example just for hypothetical, suppose उनकी they were doing an X 10 rupees turnover suppose, so हमने उनका ऑफिस बनाया, घर बनाया, मल्टीपल और प्रॉपर्टीज बनाई, ऑफिसेज बनाए, विद द स्पैन ऑफ 6-7 years वो 10 rupees से आई थिंक 10,000 पे पहुंच गए. तो उसके बाद जो बड़ा बंदा होता है या पीपल हु इज ऑन द ग्रोथ चार्ट, हु इज ऑन द टेक ऑफ फ्लाइट, सबसे पहले वो अपने की बंदे छोड़ देता है, बिकॉज नाउ ईगो कम्स इनटू प्ले कि आई एम ग्रोइंग, बिकॉज मेरा दिमाग है, बिजनेस दिमाग है, मैं ये कर रहा हूँ. ही इज नॉट कंसिडरिंग द वैल्यू एडिशन ऑफ सो मेनी पीपल अराउंड हिम. सो द फर्स्ट गड्ढा वो उस टाइम खोद देते हैं. And it's very unfortunate to say they went to maybe 20,000x in 10 years, and the initial 5 years of all their projects I was monitoring it, doing it, designing it for them, and वो जितना ऊपर गए आज उतना माइनस में है. Then मेरे लिए तो रोज का एनकाउंटर है. There was a company again, I can't name them, in फरीदाबाद. इट्स दे आर इनटू ऑटोमोबाइल्स. अब उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल क्लैश है. एक मेरा ही एसोसिएट आर्किटेक्ट है हु इज हेल बेंट बिकॉज ही वांट्स टू मेक सम मनी. इज मैं क्लाइंट को उसके प्रोजेक्ट्स या घर फैक्ट्रीज को ठीक कर रहा हूँ, बट वो साइमल्टेनियसली ऐसे गिमिकी ऑप्शंस दे के क्लाइंट को कन्विंस कर देता है, और देर But we're reducing the cost, reducing की वो इतना ही. or they're saying कि नहीं, yeah, I mean cost is one of the biggest factors in the Indian context, or trying to convince the second generation of not what is the point of having a state quality product. We can buy a cheap product, turn it around in 3 months and then sell it. एक महीने बाद, एक साल बाद बेच के नया ले लेंगे, इतने पैसे के. और not making effort to do the design. So I'm keeping my fingers crossed because I did a lot of work for that group, and unfortunately another architect or a colleague, he has totally done things which are anti now. So things, और ये law है, जब आप गलत चलना शुरू करते हो तो गलत लोग ही मिलते हैं आपको पहले, जो आपको ट्यून करते हैं गलत करने में. बट इफ योर शिप इज बिग तो डूबने में टाइम लगता है, एंड बट होल हो जाता है. हो सकता है वो डूबने इस जनरेशन में ना डूबे, हो सकता है सेकंड जनरेशन डुबा दे, बट डूबना डूबेगा क्या है शो. वो? हाँ, उसमें मैं गारंटी है, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ. Just because It's not, there are multiple reasons. Vastu compliance. No, we should not talk only Vastu. We should talk in totality. There are multiple sciences. Vastu is just one element of it. Vastu is not a complete science in itself. So alternative sciences जितनी भी हैं, अगर वो 20, 25, 30 हैं, वो सारी क्यूमुलेटिव एक चीज पैकेज बनाती हैं. एस्ट्रोलॉजी विल गिव यू समथिंग एन एज. अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो मिलेगा ही नहीं. किस्मत कहाँ से डिराइव होती है, आप कहाँ पैदा हुए, Then ultimately अगर किस्मत में नहीं है तो फिर मैं किसी भी चीज पे क्यों फोकस करूं? तो क्योंकि हमें पता ही नहीं है. नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हैव यू, आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी की सर्विस कराते हो मंथली बाय मंथली. आपके घर में एसी है, उसकी सर्विस कराते होगे. आपके घर में आरओ है, उसकी कराते होगे. सबकी सर्विस कराते हो. आपने कभी अपनी सर्विस कराई है? गुरुद्वारे जाता हूँ. नो, दैट इज नॉट सर्विस. दैट इज नॉट सर्विस. सर्विस मीन्स in the literal sense to understand what you are as a human being. वो गुरुद्वारे जाके नहीं आपको पता चल सकता, या मंदिर जाके नहीं पता चल सकता. What are your strengths? What are your weaknesses? And where does your ego lie? So मैं इस सिचुएशन में आ चुका हूँ. मैं आई हैव बीन ऑन अ ट्रेन कॉल्ड जागृति यात्रा.
तो आई बीन देयर लाइक मैं उस पे क्या इट्स एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेन उसमें 500 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया एंड वी ट्रैवल फॉर 15 days in a train Yeah. and we cover the whole outskirts of India and every village where some or other thing is happening around how the NGO is helping the kids to raise a livelihood and all. So that's where I learned कि I am very good with talking to people and that's थोड़ा सा मुझे खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करा उसने. यस, बट हमेशा आपको, जब भी आपको कोई चीज़ सर्विस करनी है, अपनी सोल की सर्विसिंग करनी है, आपको एक आउटसाइड एजेंसी चाहिए जो अनबायस्ड हो, न्यूट्रल हो और उस लेवल पे पहुंची हो. आज सपोज एग्जांपल एक पॉलिटिकल फिगर है, अगर उसको कोई बीमार, उसको छींक भी आ जाती है, ही गोज टू द बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट पीपल, बेस्ट थिंग्स. सो व्हाई कांट एज एन इंडिविजुअल वी थिंक कि हमें बेस्ट अपने पैरामीटर में मिलना चाहिए. वो तब मिलता है जब हम अपनी, और उसके लिए आपको एक गाइडेंस चाहिए. योर ओन सोल से मीन्स मुझे अपनी, लोग 100 साल जो भी जिए हैं, आई एम नॉट सेइंग, एंड ऑल माय स्टेटमेंट्स आर नॉट मेंट, बट दे आर मेंट फॉर 90% ऑफ द पीपल. किसी ने अपना कभी पैरामीटर डिफाइन करा है? कभी अपना ईगो लेवल, अगर कोई पैरामीटर है, ईगो लेवल का पैरामीटर आपने कभी ढूंढा अपना क्या? क्योंकि ईगो से एक्सेप्टेंस डायरेक्टली लिंक्ड है. मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये मेरी वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, और पूरी लाइफ निकल जाती है. सो पीपल हु आर सक्सेसफुल, who are evolved or who are big, who made big companies worldwide, have gone through and they have hired the right kind of people to do these analysis. There are people who have dietitians who control their, अगर आपको एक सपोज एक हफ्ते बाद एक इम्पोर्टेंट फ्यू बिलियन की डील करनी है, तो उनका डाइटरी पैटर्न चेंज हो जाता है एक हफ्ते पहले. How is that relevant and बिकॉज आपको एग्रेशन में जाना है, आपको, आपका, मेरा नेचर एग्रेशन का है. मुझे पता है उस डील में मैं अगर एग्रेशन शो करा, वो डील गई. सो आई चेंज माई हैबिट्स दैट उस दिन मैं काम रहूं. या प्रोफेशनल डूइंग दैट, यू विल बी सरप्राइज. I am surprised. Yeah, so coming back, like you said, you are good in marketing. So marketing is very generic. You have to identify marketing in convincing a product, convincing an idea, convincing a process. That's still my exploration stage. Yes, yes. So uske liye, like again, coming back to where we started, there are no platforms to exchange these ideas. To identify yourself, to introspect yourself. Yes. And know your strengths and weaknesses, which can be easily defined through these sciences. भाई जिस दिन आपको पता चल गया आपकी, सी दीज आर लाइक, आई विल गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. दीज आर लाइक, आज आपने गाड़ी खरीदनी है, यू वांट टू बाय अ गुड जर्मन कार. One of the important features will be, over and all the aesthetics and the jing bang, will be the safety feature. अब पहले How एक many भी एयर airbags? बैग नहीं होता था, फिर 2 होते थे, फिर 6 6 हैं, कंपल्सरी हुए. अब 8 हो गए. बहुत बड़ी गाड़ी में जाओगे तो रेयर पैनल, फेंडर सब जगह होगा. हाँ. तो आप एयर बैग ले रहे हो, इसके ये मतलब थोड़ा ना कि आपकी शोरूम से बाहर निकलती ही गाड़ी बैश Preventive अप है हो वो. गई. इट्स प्रिवेंटिव ना. सो दीज साइंसेस आर लाइक एयर बैग्स. It's You should, good connection there. so you should know them. जिस दिन आपको जरूरत पड़े, यू शुड बी एबल टू प्लग इन प्लग आउट. हम डिनायल मोड में रहते हैं, ट्रस्ट मी, कि होल ऑफ आवर लाइफ वी रिमेन इन डिनायल मोड. Unfortunately, this society we live in only tags you with the money that you earn. That's wrong. What are contributing? I'm not saying everybody should do that, but at least some part, 20-30% of the society and the youngsters, it's a revolution. आज ये इंस्टाग्राम और ये मेटा रेवोल्यूशन आया है. अगर धीरे धीरे हम इस रेवोल्यूशन की तरह, मे बी 10 years 20 years down the line, the revolution can take a different, because it will be required. The biggest problems in the world are going to be psychological and energy based. हम एनर्जी क्या दे रहे हैं किसी को, उसमें कोई ह्यूमन टच नहीं इन्वॉल्व होगा. पीपल, Auras, basically how your aura is.
everything will revolve around this, and I'm telling you, futuristic 10 साल बाद ये होने वाला है. People will be scared. They'll be जैसे आपके पास EV चार्जर्स हैं, अपने को गाड़ी चार्ज करने के, they'll be chargers you need to cleanse your aura, because इतना आर्टिफिशियल चीजें बढ़ जाएंगी. बट उसके लिए विपाशना जैसे टूल्स अवेलेबल है नहीं. बट कितने हैं? कम है. many people have got access to it. So वो एक लेवल है. There should be some level which is generic. As a layman, somebody can just go and plug it in, plug out. आप हर चीज look at the volume of people we are ना. कितने जनों को अपॉर्चुनिटी मिली, कितने जनों के पास रिसोर्सेज हैं, कितने जनों के पास टाइम है, कितने जनों के पास सर्कमस्टांसेस हैं टू गो देयर. We want something that we can embed in their daily lifestyle. Yes, which should start from the home, the parents, the school, the colleges, even if it is in the entire, suppose in entire 1 year of your, suppose 11th में हो, आपको पूरे साल में एटलीस्ट 2 लेक्चर्स मिल जाने चाहिए इस पे. So that you can introspect कि where No, you stand, right? कहाँ we फंस- should कहाँ- start thinking on these lines. There is something beyond this, and it is for all self improvement. We have the talent. The Indian gene pool is very very refined and very very aggressive भी है, creative भी, सब कुछ है. जितनी आर्ट और डाइंग स्किल सेट्स इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है. हम लोग उसको इकट्ठा नहीं कर, properly utilize नहीं कर पा रहे. प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर पा रहे. सो व्हाट आई एम आफ्टर इज टू क्रिएट दिस प्लेटफॉर्म, which we are working at our level. It's not that, but kids like you can scale it up through the apps, because that's our weak point, Yeah. to go To digital. understand technology. हाँ, तो उसमें अगर if you can get these things digitally, the content, We would love to. and people sitting in report, somebody sitting in Meerut, somebody sitting somewhere in Bihar, somebody in उत्तराखंड बैठा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन गाइडेंस नहीं है कि फर्स्ट स्टेप कहाँ लेना है. जब आप एक हाईवे पे चलोगे तभी उस डेस्टिनेशन के कोल. Mentorship नहीं है. ये most important. मेंटरशिप इसलिए नहीं क्योंकि सबको सिर्फ पैसे, दे ओनली इंटरेस्टेड मेकिंग मनी, विच इज नॉट रॉन्ग. सो इफ यू मेक योर मनी मेकिंग टूल एंड योर सोशल टूल रन ऑन द सेम रेल, दैट्स द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन. अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगी? आप पैसे कमा लोगे, पता चला कोविड ने ही सिखा दिया, आपने पैसे आप कमा रहे हो, बेनिफिशियरी कोई और है फ्यूचर में. So what are you doing? Real estate, you're deploying capital on your XYZ relative के name पे, कल को God forbid, and overnight things change within seconds. So बहुत सारे cases हैं, आप thousands of cases in last 4 decades where clients have exponentially grown, and 90% सक्सेस रेट है where we go. बट क्या होता है कि फिर जब वो ग्रो कर रहे हैं ना, तो वो छुपाने लग जाता है. सी वी वर्क लाइक स्कैनर्स. स्कैनर्स. अब आप मेरे पास कोई चीज़ लेके आए इन्फॉर्मेशन, तो विद द नॉलेज एंड विद द साइंसेस वी डील, आई हैव स्कैन्ड यू, योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो आप मेरे से झूठ नहीं बोल सकते. आप डॉक्टर के पास आए हो, तो उसने अगर एक बार एक्सरे पढ़ लिया आपका, वो तो बता ही देगा ना ये डिफेक्ट है. लेकिन हम क्या होता है, डिनायल मोड में हम एक्सेप्ट नहीं करते. यार मैं तो इतना कुछ करा हुआ है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं. और सबसे बड़ी बात है जैसे दिस डजंट हैव एनी एक्रीडेशन. मतलब अगर इसका भी कोई एक्रीडेशन हो कि दिस एस्ट्रोलॉजी और दिस न्यूमरोलॉजी इज सर्टिफाइड विद दिस बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, इसलिए ज़्यादा स्कैम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि इंस्टाग्राम पे हर बंदा जो 1 हफ्ता, जो आप कह रहे थे 1 हफ्ता 2 हफ्ते का कोर्स लेके आ जाता है और अपना मतलब जो भी नॉलेज है वो शेयर करने लग जाता है. ये माइट बी करेक्ट, दे माइट बी रॉन्ग, बट अगर इसको स्कैन करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल. सी दैट वी आर टॉकिंग, सी वो काम गवर्नमेंट कर सकती है, हम नहीं कर सकते. आज तक रियल एस्टेट नहीं रेगुलेट हुई, तो वो कहाँ से होगी? रेरा. बट हाउ मेनी ब्रोकर, यू नो, वी वर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन लंदन फ्यू इयर्स बैक. वहाँ पे जो ब्रोकर है, a person who is going to fetch you a house or sell a house, is the ultimate authority. He's got more powers. He can take you to court. Okay. Because there are official documents, and it is his duty
to get the legal certified, to get the compliances, to get the evaluation of the building, everything on black and white. So we are right now primitive in the real estate industry. यहाँ पे एंट्री लेवल बैरियर ही नहीं है. आप आज ब्रोकर थे, कल ठेकेदार बन गए, ठेकेदार से बड़ा डेवलपर बन गए 15 साल में. There is no entry level barrier, there is no कोई टेस्ट थोड़ा ना हो रहा है. It is only going by the money, and then you become the face of the money, and the money comes from various sources. बाहर नहीं है ना. This is an unorganized sector. We are also struggling with this because it's a highly unorganized. तो वो तो अभी तो शुरू हुआ है. The alternative sciences just started. रियल एस्टेट तो बहुत पुराना है. जब रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, इसमें बहुत we are talking at things happening at the government level, we operate, which is going to take time. But अगर at individual level, suppose आप कॉलेज में 100 बच्चे पढ़ रहे हो, उसमें से 10 भी करते हैं, so then it becomes a cascading effect. So we need to start this. 10 और आगे 10 को बता रहे हैं. So the create platforms which at least give you, there is no reference how to buy a real estate. कोई ऐसा रेफरल ही नहीं है. पॉडकास्ट 50 लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर पैर किसी को नहीं पता. डेवलपर अपने ही इज ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी एंड ही इज स्पिनिंग ऑफ. एक प्रॉपर्टी होती है दूसरी. वाई आर डेवलपर्स वाई डिड ऑलमोस्ट नोएडा, दिल्ली, एनसीआर, इतने डेवलपर्स क्यों डिफंक हुए? They had the best properties, best projects, everything was best, but they all ended up into fiasco. So it's a system at that level we can't change, but what we can change is at our level. So ये जनरेशन भी तो 10 साल बाद एंटरप्रेन्योर्स बन के अपनी 10-10 प्रॉपर्टीज खरीद रही है ना, तो एटलीस्ट वहाँ तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. देन वी आर नॉट टचिंग बी टियर, सी टियर सिटीज. सबसे बड़ा मिथ यही है कि जो करना है प्राइम लैंड पे करना है. आज जो बड़े डेवलपर्स बने हैं, वो 30 साल पहले कोई गुड़गांव सोच सकता है? इट वाज सिंगल रोड. सो विजन हैज टू बी देयर. या लॉट ऑफ अदर पीपल वर. सो दैट विजन है. गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे चेंज हो रही हैं, व्हाट आर द फ्यूचर डायनेमिक्स, हाउ विल द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन प्ले, कौन सी स्टेट स्टेबल है in terms of their approach. There are certain states driven by the local politics also, na. कहीं जगह the nature and the soil is such it's suitable for certain kind of business models. So all those things play a part in developing and setting up a real estate venture. So that's how it draws in either the industrialist or the residential part of it. फिर बहुत है. It keeps evolving. So what do you think what are the 3 major things that one should look out when they are buying their first piece of land or any property? See, first is that is it your first property? Then what is that? आपका पर्सनल लाइफ का रोल क्लियर होना चाहिए. रोड मैप आप अपने लिए ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, फ्यूचर एजुकेशन के लिए ले रहे हो. या so primary properties, whatever resources you have, you should buy a reputed property. If the resources are less, आप suppose आप 500 गज नहीं afford कर सकते, 200 ले लो, but don't compromise on the quality or the place. And second, थोड़ी सी calculation you have to do of the futuristic problems. So your property should be able to solve those futuristic problems. In terms of take on that load, growth model क्या है. सपोज आपने एक प्रॉपर्टी ले ली, बट वेसिनिटी में जो एनवायरनमेंट बनने वाला है फ्यूचर में, वो ग्रोथ बेस्ड नहीं है. सो दोज ड्यू डिलिजेंसेस शुड बी डन, एंड दिस इज द गैप इन द मार्केट ना. देयर इज नो प्लेटफॉर्म. देयर आर पोर्टल्स वेयर यू गो, they'll list you 100 properties, but एक एनालिसिस ऑफ अ प्रॉपर्टी. सपोज यू से ओके माय बजट इज 5 crores I want to spend. There is no app, there is no person, there is no software where you feed in. It gives you first the process, the availability, and the future reward benefit ratio of that. आजकल तो ये होता है कि अगर मैंने मैजिक ब्रिक्स पे गलती से भी अगर एक बार प्रॉपर्टी खोल ली, तो आई गेट लाइक हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो. बस को थोपना चाहते हैं. दे नॉट प्रोवाइडिंग द रियल सॉल्यूशन कि हाउ इट विल बी बेनिफिटिंग मी.
So that is, you are answering your own question, that suppose you're planning to open this platform, Right. address this point. आज एक बात बताओ, मैंने अभी लंदन की बात करी, वहाँ पे क्या है कि अगर आप आर्किटेक्ट हो और अगर प्रॉपर्टी जो बंदा रजिस्टर कर ली जिसने, एंड इट इज़ अ प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट, यू हैव टू साइन एन एग्रीमेंट विद द ब्रोकर. यहाँ ब्रोकर क्या हो, यहाँ एक ब्रोकर के नीचे 10 और ब्रोकर होते हैं. एक स्टेज आ जाती है, वो कहता है यार लो तो सही, मैं फ्री में दे दूंगा. सो उसमें क्या क्वालिटी कंटेंट आएगा? दे विल ऑलवेज कैमोफ्ला, देयर इज नो क्राइटेरिया ओनली. उनकी चेकलिस्ट इतनी स्ट्रिंजेंट है. अगर आपने जब बिल्डिंग पास कराई तो आपने एक रूम में 5 लाइटें लगाई, और अब आप बेच रहे हो तो आपने एक लाइट एक्स्ट्रा लगा दी, वो भी काउंसिल वहाँ, जैसे DD MCD वहाँ काउंसिल होता है, वो काउंसिल से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि मैंने लगाई थी एक्स्ट्रा, अब मैं बेच रहा हूँ. सो देयर इज नो बेंचमार्क इन दिस लाइन ना. एंट्री लेवल कोई भी कर सकता है. यू हैव लिटिल बिट ऑफ मनी, यू कैन बिकम अ बिल्डर. आपने एक दो घर डिज़ाइन कर दिए, आप डिज़ाइनर बन गए. उसके बाद क्या बना रहे हो, पिंटरेस्ट जिंदाबाद. There's no regulatory body. वो प्रॉब्लम है. सो लाइक फूड में है, And फैशन में है, या आसन है, ज्वेलरी में है. इसमें नहीं. इस पे रेरा है, बट रेरा बहुत वो भी अब आई है, वो एक बहुत ऊपर के लेवल पे है. बट रेरा, हर ब्रोकर के पास तो रेरा है आज की डेट में, मतलब रेरा को गवर्न कौन कर रहा है अब? रेरा की उसकी आंसरेबिलिटी, एक बात बताओ ना, लॉ है, एनफोर्समेंट नहीं है. सो अभी क्या है कि वी हैव टू मेक मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स विच आर सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ, दे क्रिएट द लूप देमसेल्व्स. अब क्या होता है, एक एग्जांपल है, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो वी वर जस्ट डिबेटिंग, वो मेरे पास डिज़ाइन के लिए आए. मैंने, ही सेज कि अरे क्यों करते हो आप ऐसे, व्हाई डू यू वेस्ट सो मच ऑफ टाइम डिजाइनिंग अ गुड प्रोडक्ट, इतनी देर में आप 4 और प्रोडक्ट ले सकते थे. was he focus on quality? No, quality one, we can we make more profit out of that. Yeah. That is one. मैंने कहा सेकंड, एक बात बताओ, आप अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको वो बायर मिलेगा जो प्रोग्रेसिव बायर है. ठीक है. और आपका प्रोडक्ट सपोज नॉन वास्तु कंप्लायंट, जस्ट फॉर कंसिडरेशन, हम कहते हैं कि एक 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 ये एक फार्म हाउस है, एक कोठी है, ये नॉन कंप्लायंस है, तो आपका घर वो लेगा जो जिसके अगले 5 साल में डूबना लिखा हुआ है. गलत चीज वही लेगा ना. बेसिक लॉजिक. तो जब वो डूबने वाला बंदा लेगा तो सबसे ज्यादा आपसे हैगल करेगा, सबसे ज्यादा नेगोशिएट करेगा, सबसे ज्यादा तंग करेगा. ऑन द कॉन्ट्ररी, आपने सही चीज बनाई, हो सकता है उसकी होल्डिंग कॉस्ट मिले, बट अगर आपको प्रोग्रेसिव बंदा मिलेगा, वो कहेगा यार क्या है, चीज़ तो अच्छी है, पसंद आ गई, चलो लाख रुपए, वो 50 लाख एक्स्ट्रा, करोड़ रुपए एक्स्ट्रा है, मैं ले लूंगा. वो हैगल कम करेगा. तो मैंने कहा ये डिफरेंस है बाय डूइंग अ कंप्लायंस एंड अ नॉन कंप्लायंस प्रोडक्ट. इफ यू गो टू अ रोल्स रॉयस शोरूम, विल यू आस्क कि यार इसकी टायर कैसे चेंज होगा? और जो बंदा मारुति खरीदता है वो दुनिया भर का नाक में दम कर देता है कस्टमर को. सो एंड अब इसमें क्या, द चैलेंज इज नॉट ऑल प्रोडक्ट्स कैन कम इन द सेम कैटेगरी. सारे, हाँ. तो देन यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ कि विच सेगमेंट डू यू वांट टू ऑपरेट इन. फिर उसमें अप योर स्टैंडर्ड्स. अगर आपने मारुति में ऑपरेट करना है या एट अ मास मार्केट ऑपरेट करना है, यू अप योर स्टैंडर्ड्स देयर ना. उसमें भी तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. तो अब एक बात है, फैशन में, यू नो हाउ फैशन, देयर इज वास्तु इन फैशन आल्सो, I'm not aware. Please enlighten. विच इज कॉल्ड पावर ड्रेसिंग. Okay. आज मुझे एक आज मुझे एक काउंसलिंग की मीटिंग करनी है, तो मुझे एक पर्टिकुलर वे में ड्रेसअप करना है, तो जिसको मैं काउंसल करूंगी उसको 100% रिजल्ट आएगा. ठीक है. अब मेरे एक फ्रेंड है, शी इज़ अ वेरी गुड योगा टीचर, दे डू योगा विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऑल कैटेगरी. तो उसका सपोज 30 लोगों का सेशन था, तो उसने मेरे से, वी ब्रेनस्टॉर्म, सी आई हैव मोर देन 100 एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट्स विद मी. आई मैं कईयों को बताता ही नहीं हूँ कि मुझे नॉलेज है, मैं उनसे पूछता हूँ तुम बताओ. तो मुझे पता चलता है यार ये कहाँ पे बेचारे, अभी तो इनको ABCD नहीं पता, कितने लोगों को ख़राब कर रहे हैं.
नहीं तो I spend money to do my research. अगर अगर सपोजिटली मेरे को अपने बारे में जानना है अकॉर्डिंग टू वास्तु, तो वेयर शुड आई रीच आउट? See, it is not Vastu. It is मतलब अकॉर्डिंग टू माय नेम, माय बर्थ प्लेस। so it is a biochemistry. It's physics and biochemistry. जिसका नाम एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है और न्यूमरोलॉजी है। ये 3 साइंसेस में पूरा निचोड़ है आपका। आपका A to Z आपको पूरा क्लियर मिल जाएगा। सपोज अगले 10 दिन बाद मेरे एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो मेरे लिए बहुत फेवरेबल है। उस दिन मुझे छक्का लगाना है, लेकिन पता होगा तो छक्का लगाओगे ना। आप छक्का लगा रहे हो किसी और दिन जिस दिन आउट होना है। बट हाउ डू आई आइडेंटिफाई कि ऑन व्हाट डेज आई एम स्ट्रांग एंड व्हाट डेज आई एम So वीक? that's a pattern, na? That's a science. We'll with your name, date of birth, everything we can create a roadmap. अगर आपके suppose I take your case. Your destiny says you can be a good you're good in communication, but you should do your communication for a licensing purpose. फॉर अ Licensing. व्हाट इज लाइफ? Licensing means when you are connecting two people, like government licensing, corporate licensing. Okay. मीन्स एक कॉर्पोरेट को कोई कोई लॉ पास कराना है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और डिपार्टमेंट के बीच में यू बिकम द ओके, गॉट योर पॉइंट। एंड मेक योर मनी आउट ऑफ इट, ब्रोकरेज आउट ऑफ इट। और आप, क्योंकि आप कॉलेज से निकले, आपका फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि आपको मार्केटिंग मिल जाती है एक एफएमसीजी प्रोडक्ट की, वो भी मार्केटिंग है, लेकिन मार्केटिंग में आपकी स्ट्रेंथ वो है। तो अगर आपको पता चल जाए तो आप उसमें आपकी कैपिंग, जो आपने जितने पैसे कमाने, जो अचीव करना है, वो फिगर को मैं नहीं चेंज कर सकता, उसका रास्ता स्मूथ बना सकता हूँ, मैं अपनी नहीं चेंज कर लूँ। तो जो भी ये बंदा इस डोमेन में बताता है कि ये कर लोगे तो ओवरनाइट ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। द पीपल हु आर मेच्योर्ड इन दिस साइंस, जिन्होंने 8-10 साल काम कर लिया है, वो क्या करते हैं, सपोज वो वास्तु भी कर रहा है, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकली आपका डाटा ले लेगा। वो कहेगा, देखो उसको, फिर वो स्टडी करेगा, यार इसका आगे 6 महीने बाद टाइम ठीक आने वाला है, मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर दूंगा, वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो जब वो ठीक हो जाएगा, आप सोचोगे यार इसने करा, मैंने ये करा था तो ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट हो जाएगा। यस। अब 90% पीपल फेल बिकॉज दे डोंट नो कि वो स्ट्रगल के बाद व्हेन आर दे गोइंग टू अल्टीमेटली सक्सीड, उसमें गलतियां करते हैं। ऑड केसेस तो हमेशा होते हैं, एंड जो मैं बोल रहा हूँ ये वैलिड फॉर 90% ऑफ पीपल है। 10% पीपल ऑड होते हैं, बट 90% का क्या करोगे? बिजनेस, अगर आप इसको बिजनेस में कन्वर्ट करते हो तो पैसा तो मासेस में है। मेक मनी इन द मासेस बिकॉज दे कांट अफोर्ड। हम तो अभी तो खैर व्हाट आई एम टेलिंग इज ओनली 0.1%। हम तो ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यू कांट इवन फैदम की किसी को ये पता कैसे चल सकती है, बिकॉज ऑल दैट इज हिडन इन योर नेम, इन योर डेट ऑफ बर्थ। लाइफ भी ट्रस्ट में, इसी क्या होता है, ये हिच है, ये हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स ने हमें खराब करा हुआ है। वो आप आए बात बताओ, आज आपको डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट डायग्नोज करा डायबिटीज़ है, उसके बाद क्या करना है आपको? शुगर कम खानी है ना, कंट्रोल खानी है नहीं, कोई इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कोई चीज़ में क्या रिलीजन है? तो हम आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डायग्नोज करेंगे, आप उसको फॉलो करो। वाई आर वी ऑलवेज लुकिंग एट द नेगेटिव साइड ऑफ अ सिचुएशन? नेगेटिव साइड इसलिए है क्योंकि जो मास मार्केट लोग कर रहे हैं ऑन इंस्टाग्राम, दे आर ऑल, आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, दे आर मेकिंग इट्स अ ग्लैमर बिजनेस, इट्स अ ग्लैमर ड्रिवन बिजनेस। आप शोशाबाजी करके क्विकली पेज 3 पे आ जाते, यू अट्रैक्ट आई बॉल्स, बट वेयर इज द कंटेंट? एंड देन देयर इज एआई इन्वॉल्व। अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जिसमें एआई आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी बताएगा। बट हाउ इज दैट रिलेवेंट कि आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि एआई आपको बता सकता है? मुझे बताओ, एआई में कंटेंट कहाँ से आएगा? फीड बाय ह्यूमन। तो फीड बाय ह्यूमन ना, तो अल्टीमेटली सोल्यूशन इज ह्यूमंस ओनली। मैं गलत फीड करूंगा तो एआई गलत एल्गोरिथम बनाएगा। बट उसके पास 10,000 लोगों का डेटा है, 10 लाख लोगों का डेटा है जो कि सेम चीज पूछ रहे हैं, तो वो मेरे को ज्यादा बेटर तरीके से तो वो जेनरिक बताएगा ना आपको।
10,000 कॉम्बिनेशन एआई कैसे बनाएगा? एआई ओवर द टाइम बनाएगा, 5 साल लग जाएंगे, क्योंकि वो एल्गोरिथम को मैच कैसे करेगा? एआई का हाउ डज एआई वर्क? आपने एक डाटा बनाया, दूसरे ने भी डाटा बनाया, उसकी कॉम्बिनेशन हुए, उसके इंटू एक्स कॉम्बिनेशन, फिर फर्दर कॉम्बिनेशन हुए, उसके सिमिलर क्वेश्चंस हुए, क्वेश्चंस के फिर सिमिलर आंसर्स हुए, वो उससे चलता है। बट जो बेसिक कंटेंट है वो तो ह्यूमन ने ही बनाया है। अगर मैंने कंटेंट ही गलत डाल दिया तो रिजल्ट भी तो वैसे ही देगा। क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं वो भी important है। नहीं, एंड सेकंड इज द, नाउ व्हाट इज द वन टॉपिक वी डिडंट टच, जो एआई है या ये जो साइंसेस हैं, आपको इनको टूल की तरह यूज करना है। आप कैलकुलेटर है, वो भी तो टूल है ना आपका, क्योंकि आपको बचपन से समझाया जाता है ये कैलकुलेटर कैलकुलेशन करेगा। अगर हम आपको ये एड्रेस करना शुरू कर दें कि ये साइंसेस एक टूल है, इसको 1 घंटा यूज करके बंद कर दो, तो लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल। अब आप सोचो मैं काम कुछ नहीं करूं और ये अपने आप ही काम कर दे, तो वो गलत बात है। मैं नहीं बिलीव करता था वास्तु में। अच्छा, अब मेरे पास ऐसे बहुत केसेस आते प्रायर टू हैं। एक बार आप, अगर आप सरदार हो, हाँ जी, मैं सबसे पहले कोई भी सरदार मिलता है मैं उनको बोलता हूँ मेरे से टिकट लो और अमृतसर जाओ, ठीक है। और वहाँ से नहीं वापस आओ, और फिर वास्तु की बात करेंगे। जो अमृतसर नहीं जा सकता मैं उसको बोलता हूँ बंगला साहब जाओ, वहाँ पे जाके अपना फ़ोन खोल के कंपास देख लो और फिर वापस आओ। जो हिंदू है मैं उसको बोलता हूँ तिरुपति चले जाओ, हनुमान मंदिर चले जाओ। आई आप जाके देखो व्हाई हैव दीज, एक पूरे कनॉट प्लेस में एक इतनी सी छोटी जगह क्यों इतनी पावरफुल एनर्जी है कि वहाँ सुबह शाम लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। Isn't it because of the things that are situated there? नो, गुरु ग्रंथ साहिब वहाँ पे इसलिए नहीं जा रहे। गुरु ग्रंथ साहब इज सेकंड पार्ट, पहले बना होगा, बने के बाद अलाइनमेंट उसकी देखो। अलाइनमेंट व्हेन यू टॉक ऑफ, अगर आपने सुना होगा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, वो क्या है? वो ग्रेविटेशनल पुल्स ही तो हैं। तो उसमें कौन सा रिलीजन इन्वॉल्व है? आजा वेटिकन चले जाओ आप, जो वाइट हाउस है ट्रम्प का, आप जाके देखो, वहाँ जाके कंपास खोलो, परफेक्टली अलाइंड है। बट देन व्हाई डोंट दे मार्केट इट दैट वे? बिकॉज डराएंगे नहीं तो पैसे कैसे बनेंगे? क्योंकि सिखिज्म में तो सबसे बड़ा टैबू है कि ये एस्ट्रोलॉजी वैसे कुछ नहीं होती। एक बात बताओ, गुरु साहब ने जब, अगर आपने देखा मक्का में कहते थे जब पैर लेट के बैठे, तो वो उस टाइम पे उनकी पैरों की अलाइनमेंट चेक करो, डू द रिसर्च थोड़ा सा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, अमृतसर जाओ ना, अमृतसर जाओ। क्यों वो पॉइज्ड है, क्यों वाइब्रेशन इतनी हाई है, क्यों पॉजिटिव है? एक बात मैं, और मिथ आई जस्ट ट्राई टू ब्रेक। आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, आपने बोला, हर तरह के डॉक्टर हैं, कोई आयुर्वेद है, कोई एलोपैथी है, कोई होम्योपैथी है, एक मैग्नेट थेरेपी भी डॉक्टर होते हैं, हाँ, होते हैं। ओके, जगह फिंगर्स पे लगाई एक एक्यूप्रेशर भी होता है, हाँ ये जी, भी होता है ना। राइट। तो क्या होता है, वो आप बोलते हैं यार मेरे यहाँ दर्द हो रही है, वो क्या करता है, वो क्या, ब्लड की थिनिंग के लिए करते हैं वो। नहीं वो क्या करते हैं, आपको छोटे छोटे मैग्नेट यहाँ बांध देते हैं। तो मैग्नेट क्या करता है? ब्लड से रिलेटेड कुछ होता है। नहीं, मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट है, वो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है तो रिपेल करेगा, फेल करेगा और ऑपोजिट पोल्स को अट्रैक्ट ट्रैक करेगा। करेगा। तो यहाँ वाला मैग्नेट नॉर्थ पोल यहाँ साउथ पोल करते हैं, तो ब्लड में आयन होता है। हाँ, राइट। तो आपका ये नर्व सपोज यहाँ से लिंक्ड है, तो वो जब यहाँ पे मैग्नेट फील्ड क्रिएट करता है, तो वो फील्ड की वजह से वो आयंस ब्लड में से इधर आने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो आयन आते हैं तो आपकी वो एलिमेंट ठीक कर देता है। जब वहाँ फिजिक्स यूज कर सकते हो, तो यहाँ फिजिक्स यूज करने में क्या प्रॉब्लम है? हम लोगों को पता नहीं है। मेरे को ऐसे लगता है क्यों नहीं करते, बिकॉज देर इज नो टैंजिबल थिंग। ये टैंजिबली तो बता रहा हूँ आपका। जैसे वो फ्यूचर में होगा ना, अगर मैं अभी अकॉर्डिंग टू योर एस्ट्रोलॉजी चलता हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस चलता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे फ्यूचर में दिखेंगी। और ब्लड थिनिंग मेरे को विद इन फ्यू वीक्स मेरे को रिजल्ट आने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसी ऐसी साइंसेज हैं,
आपको 24 आवर्स में रिजल्ट आ सकता है, आप में उतनी प्योरिटी होनी चाहिए करने की, और इसमें ब्लाइंड फेथ इंपॉर्टेंट है। यू कान टेल योर डॉक्टर यू आर ऑन दी ओटी और कह रहे हो यार यहाँ इंजेक्शन मत लगाओ, मेरा मन कर रहा है यहाँ लगा लो, तो डॉक्टर तो वहीं लगाएगा जहाँ उसको सीखा हुआ है। प्रैक्टिकल इंसान होगा तो ब्लाइंड ट्रस्ट कैसे करे? जैसे अगर मेरे तो एक बात बताओ, आप एक रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, हाँ, वहाँ पे आपको क्या चीज़ देखी है कि हाँ ट्रस्ट के लिए तो जा रहे हो? नहीं वहाँ पे तो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है, मैं इसलिए जा रहा हूँ। नहीं, तो उससे क्या होगा? गुरु ग्रंथ से, मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी से क्या होगा? वो तो हमारे फैक्ट्री में भी गुरुद्वारा है, हमने बनाया हुआ है, उससे क्या होगा? आपकी इंटेंशन और उससे जो प्योरिटी और एनर्जी क्रिएट होती है, उससे रिजल्ट आता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला? यार, क्या पॉइंट, गुरुद्वारा मत्था टेकते हैं वाहिगुरु वाहिगुरु, बाहर आके गालियां शुरू हो जाती हैं। 100%। एंड नॉट वन, आप मेरे साथ चलो, मैं बाहर खड़े होते, लेट्स डू अ पॉडकास्ट स्टैंडिंग देयर। हमें गुरु ग्रंथ साहब सिखाता है कि गाली गलौज करना? नहीं, दिखाता है चोरी चराकी करना, इसके पैसे मार लो, उससे इधर लूट लो, हाथ जोड़ के ससरीकाल करके जेब काट लो अगले की? मैं सबको दिखा दूंगा आपको। नॉट ओनली गुरुद्वारा, वी कैन गो टू अ मंदिर, वी कैन गो टू अ चर्च, वी कैन गो एनीवेयर। सो ये मिथ है। आप वहाँ पे जो जो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको वो तभी लेके आओगे अगर आप खुद पॉजिटिव हो। अगर सब कुछ उधर से ही चल रहा है, फिर काम करने की जरूरत क्या है? जो जो बंदों को रिजल्ट आ रहा है, नाउ देयर आर अनदर काइंड ऑफ पीपल जो सेवा करते हैं, दसवंत करते हैं, वो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बताते भी नहीं हम क्या कर रहे हैं सेवा। वो वो पॉजिटिविटी है। और कुछ हैं वहाँ पे 10 लाख का चढ़ावा चढ़ाएंगे और दुनिया भर में डिंडोरा और वीडियो इंस्टाग्राम बनाएंगे, हमने ये दान करके आए थे। वो सबसे बड़े फेलियर है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू कैमोफ्लाज समथिंग विद मनी विच दे डोंट हैव। अपनी सर्टेन मतलब I'll give you another example. आप विच यू कैन एक्सपेरिमेंट, आप जाते हो एक सोसाइटी में, एक टैग है, एक टैबू है, वो देखता है यार ये इसने ये शर्ट पहनी है, ये ब्रांड की बेल्ट पहनी है, ये जूता पहने, ये ठीक होगा। नहीं, तो उसने उसने आप उसने जस्ट वी आर जज्ड बाय अ टैग और अ लेबल ऑफ समबडी एल्सेस। राइट। ब्रांड तो किसी और का, प्रोडक्ट भी किसी और का, आप तो सिर्फ उसको यूज कर रहे हो। दूसरे फॉर्म में आप जाओ, आप कॉन्फिडेंट हो, आपके कोई लेबल नहीं लगा, बट आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि वो ब्रांडेड चीज भी जीरो फेल हो जाती है आपकी। ब्रांडेड में तो फिर भी कैलकुलेशन जोड़ लेगा, यार ये तो 5 लाख का बंदा है। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो अगर नेचर में, एज एज अ ह्यूमन बीइंग, तो हो सकता है उसकी वैल्यूएशन वो 5 लाख की आपकी 50 लाख की करे। सो एक हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक। हाँ, और अगर ब्रांड पहनना है, फिर वो पहनो जो अल्टीमेट है। इफ यू कैन अफोर्ड द मून देन बाय द मून ना। लेकिन प्रॉब्लम इज हम अफोर्ड करते नहीं, हम हम शोशाबाजी से चलते हैं। वी क्रिएट अ ऑरा जो आर्टिफिशियल है। अगेन आई विल कीप रिपीटिंग, द नेक्स्ट बिग बिजनेस इज गोइंग टू बी एनर्जी एक्सचेंज। आप किसी से हाथ मिलाते हो, क्या एनर्जी दे रहे हो और क्या ले रहे हो, ये एक साइंस है। What did you feel today while shaking my hands? नो आई मीन, आई एम पॉजिटिव, सो आई डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। वो मुझे जहाँ नेगेटिव चीज़ होती है, वो अगर नेगेटिव होता तो हम 10 मिनट में इंटरव्यू रैप अप कर चुके होते। हाँ, 100% वो होता ही है। सो दैट इज बिकॉज माई बिलीफ सिस्टम इज सच। मेरे इतना बिलीफ है कि नेगेटिव है, या तो वो भाग जाएगा या मेरे से मिलके वो चेंज हो जाएगा। दैट इज द प्लस पॉइंट ऑफ बीइंग क्रिएटिव। आई कैरी द सेम एटीट्यूड। मुझे लगता है कि मेरे से मिलके भी लोग ठीक हो जाते देयर इज, we have not even scratched the creativity, we have not scratched these alternative sciences, we've not scratched the design, we've not, हमने अभी, we are at an evolving stage, और जो हमने evolve करा
उसमें इतनी हमने चीज़ें मिक्स कर दी कि अब प्योरिटी की अब वाई आर वी गोइंग टू वीगन, वाई आर वी गोइंग टू आज की डेट में ऑर्गेनिक, क्यों जा रहे हैं हम बैक टू बेसिक्स, क्यों जा रहे हैं? एनिमल क्रूएल्टी मैं इस दैट इज योर परसेप्शन, somebody ये होगा, किसी का और परसेप्शन ये होगा कि एनिमल्स और वेजिटेबल्स आर ग्रोन आर्टिफिशियली, इंजेक्टेड आर्टिफिशियली, हर एक की परसेप्शन अलग है ना। बट डू यू थिंक कि बाय लाइक बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन आपके लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं? ऐसा कुछ नहीं, it is only driven, see, vegetarian or non-vegetarian driven by where you stay, which part of the world you stay. These are adoptive things है। इंडिया में अब क्या है, यहाँ पे बटर चिकन चल रहा है, यहाँ पे विस्की चल रही है, तो वो कॉम्बिनेशन गलत है। बाहर में अगर आप बॉइल्ड चिकन खा रहे हो और साथ में इतना बड़ा सैलड खा रहे हो, वो कॉम्बिनेशन ठीक है। द प्रॉब्लम इज अगेन आवर इंटरप्रिटेशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वेज, नॉन वेज और एक्स वाई और वीगन, हमें उसको उसको मिक्स करना नहीं आता, दैट्स वेयर वी गो रॉन्ग। आप बताओ मुझे, बाहर कोई फॉरेनर मसाले वाला बटर चिकन के साथ दारू पीता है? तो हमने उस चीज़ की इंटरप्रिटेशन गलत कर दी ना। अगेन गो बैक टू बेसिक बैलेंस। व्हाट, अगर आपने थोड़ा बहुत आयुर्वेदा पढ़ा हुआ है या योगा पढ़ी है, आपको कहते हैं चक्रा को हाँ, बैलेंसिंग। 5 चक्रास होते हैं। हाँ, ऐसे ही आयुर्वेदा क्या कहता है, जितना वर्ल्ड में पानी है उतना ही पानी के रेशो आपके बॉडी में हो। 70%। जितनी फायर वर्ल्ड में है उतनी ही 5 से 6% फायर आपकी बॉडी में है। ऐसी ही एयर है। तो आपकी कोई भी बीमारी होती है, आपकी फायर इम्बैलेंस होती है, पानी इम्बैलेंस होता है, वात पित्त जो कहते हैं। तो सेम वे लैंड है, लैंड की एनर्जी अगर आप चेंज करते हो तो वो इम्बैलेंस होती है, जिसको वास्तु कहते हैं। सो मुझे डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है मुझे आज सो। और कोई रिलेशनशिप है, हाँ, ब्रदर सिस्टर है, फादर सन है, तो उसमें भी बैलेंसिंग है। हस्बैंड वाइफ की अलग है, पेरेंट्स बच्चों का अलग है, वो बैलेंसिंग है। जहाँ बैलेंस बिगाड़ते हो वहाँ कलेश होता है। हम उसको नाम कुछ और दे देते हैं, यार ये मेरी बात नहीं मान रहा। अगर आप बैलेंस चलोगे, अगर आपने मुझे 10 पॉइंट बोले, मैंने आपके 3 सुने और अडॉप्ट करी और 7 अपने सुना है, तो बैलेंस्ड कम्युनिकेशन है ना। बट मैंने 10 सुने और जो मेरे को लगा कि मेरे लिए ठीक है मैंने वो इम्प्लीमेंट करे तो बिल्कुल ठीक है, तो दैट इज योर गेन टुडे, यू आर इन अ विन विन सिचुएशन। तो चलो वास्तु से थोड़ा सा हम कॉन्वर्सेशन थोड़ा साइड करते हैं। बहुत देर हो गई। फर्नीचर आप मैंने नायला से बात करी थी कि यू आर इनटू लग्जरी फर्नीचर्स एज वेल। तो हाउ डिड यू एंड अप इन लग्जरी फर्नीचर मार्केट्स? See, we are not only we are basically designers, where land identification, architect, interior design, and furniture is a complete package. Okay. It's not just furniture, it's a complete process. So, because of our early exposure in the early 80s and 90s, तो उस टाइम पे इंडिया में डिज़ाइन रेवोल्यूशन आया नहीं था. Nobody knew what a world designer is in the 90s. So it's a family business. So we had that exposure internationally. So we started converting these ideas into creative form because that's what was happening in Europe. Okay. जो हमारा, जैसे हमारी एक स्ट्रेंथ थी, वो यूरोपियन पीपल कुड मार्केट दैट एंड क्रिएट अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट, एंड हमारी स्ट्रेंथ को वो मिल्क कर रहे थे. But yesterday I was researching a little bit about luxury furniture market all over the globe, and I was able to see that there are not even single Indian brand in the top 20 list as well. They're mostly European, Italian. बिकॉज वी आर बाय वी, हमारी स्ट्रेंथ हैंडक्राफ्टेड है. Yeah, ठीक है, बट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हम मैकेनाइज्ड को अच्छा मानते हैं और अपनी चीज को प्रमोट नहीं करते. mentality. मेंटालिटी है. तो जो आज मेक इन इंडिया द गवर्नमेंट इज सेइंग एंड मोदी इज सेइंग, वी वर डूइंग इट 30-35 years back, and we are still doing it. We are promoting Indian artists, Indian skill sets. We need to promote this. It's a huge industry. We need huge capital to promote it. That's why I'm saying, if institutes like yours can
play a role in communicating, not only in furniture, in fashion, food, lifestyle, in jewelry. Huge business, and India has an edge over all the other countries in terms of the skill set. डैमसीनिंग है, फेतरे देवर है, बट देखो कोई भी चीज़ इंडिविजुअल नहीं हो सकती. इट्स अ टीम वर्क. सो योर institute is one which is experimental, which should be communicated to them to either join hands or understand or try to have their own curriculum which tries to depict these aspects. हर चीज़ में we can lead the world, and trust me, next 15-20 years India story ही है. Nothing is going to happen in the world. The biggest money to be made is in India. Pro India. Yes. No, pro India होना तो बहुत अच्छी बात है. We are always there for India. In fact, we've done a lot of things which are related to the Indian aesthetics. Indian artists को बहुत promote करते हैं. We had once taken the Indian polo team to Cambridge, and we were privileged to have, we won that tournament there. So we've always been pro India. But जो टेक्नोलॉजीज और हमें प्रॉब्लम क्या, हमें उनकी टेक्नोलॉजी और सिस्टम एंड प्रोसेसेस की मेथोडिकल अप्रोच चाहिए, वो मिसिंग है. हमारे पास सब कुछ है. So where are we lacking? We are lacking in support from the government, from big institutes to patronize the artisans. एक बात बताओ, मेरा प्रोडक्ट अब हैंड क्राफ्टेड है. यू गो टू यूरोप, हैंड क्राफ्टेड जूता हो या जैकेट हो, वो नॉर्मल सपोज 100 पाउंड की है, वो 1000 पाउंड की है. 10x है, 20x है. तो इंडिया में उल्टा है. हम हैंड क्राफ्टेड को वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि उनको बेचारों को वी हैव नॉट बीन ट्रेन्ड कि यार यही तो असली वेल्थ है. I think that is not marketed well because अब आप on the other hand जयपुर रक्स को देखो. जयपुर रक्स has such big marketing कि उनका एक एक प्रोडक्ट, एक एक रग 30-30 लाख का भी है. 30 लाख का तो है, दैट्स ओके, बट हाउ मेनी कंपनीज लाइक दैट एग्जिस्ट? तो that's what we want to build, like we have to build a story behind the product. स्टोरी सब कुछ है, लेकिन क्या होता है, आप एक अच्छा हाई वैल्यू प्रोडक्ट, वी फेस दिस प्रॉब्लम. मैंने एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट आपको चेयर बेचा, ठीक है. अब आप, बिकॉज एज द यंगर जनरेशन, एज द नेक्स्ट जनरेशन और दी Gen Z जनरेशन, यू आर नॉट सेंसिटाइज कि यार रियल टीक में मजा अलग है और MDF का मजा अलग है. तो जब आपको वो सेंसिटाइज ही नहीं हो रहा थ्रू योर पेरेंट्स, थ्रू योर पीयर्स एंड थ्रू योर थिंग्स, तो आपको उसकी वैल्यू ही नहीं समझ आ रही है. IKEA से जाके ले रहा हूँ. तो आप वो कैपिटल इरोड कर रहे हो. हमारा प्रोडक्ट है, वी गिव लाइफ लॉन्ग वारंटी, सपोज वी स्टिल डू. वी आर द ओनली कंपनी, आप हमारी फैक्ट्री से जो सामान ले लोगे वो 100 साल बाद भी आप रिप्लेस करा सकते हो, हम आपको सर्टिफिकेशन देंगे. अब यही चीज़, हाँ, लेकिन उसकी कॉस्ट है, क्योंकि रॉ मटेरियल राइट है. दूसरा जगह मार्केट में जो बंदा है, आप चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हो या IKEA ले रहे हो, XYZ ले रहे हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. वो प्रोडक्ट लाया, खराब हो गया, इट्स अ यूज एंड थ्रो फॉर्मूला which the Western world is pushing here. We have never been into that formula. अब यूज एंड थ्रो में क्या, सपोज आपके पास आज 10 लाख की गुंजाइश थी, आपने 10 लाख रुपए लिए और इरोड कर दिए. हमारे प्रोडक्ट में 10 की जगह 15 खर्चे, लेकिन 5 साल वो 15 के 25 हो गए. और आपको लगता है कि एक टाइम के बाद मेरी आंखें उसको देख देख के बोर हो जाएंगी कि 5 साल बाद एनीवेज कोई मेरे घर में चेयर होगी तो मैं चेंज करूँगा. All the best things and beautiful things of the world are forever. You get married once, now you say यार बोर हो गए. वो तो ऑरेंजेस एंड एप्पल्स, मतलब So that is never the thing. The value deliverance will always remain, whatever, whether it's human or a product or a commodity. वो देखो, वो सेल्फ असेसमेंट है, उसमें यू कांट डिबेट. बोर कैसे हो सकते हो अगर वो चीज़, यही तो दैट वाज द ओरिजिनल आर्ट, दैट वाज द ओरिजिनल डिज़ाइन, कि आप ऐसी चीज़ क्रिएट करो कि वो एवर लास्टिंग हो. आज भी आप ताजमहल देखने जाते हो, क्यों जाते हो? सो इट इज़ ओनली अ माइंडसेट. यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट विच कैन लास्ट फॉर लाइफ, बट हमने यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया, विच वाज अ
which was a European or a American form of lifestyle. बिकॉज़ जो यूरोप में और यूएस में चलता है वो इंडिया में चल ही जाएगा। नहीं, यूज एंड माइंडसेट वैसा है। वो यूज एंड थ्रो इसलिए था क्योंकि उनको कंजम्पशन करनी है। हमारे पास एंड दे हैव द मार्केटिंग बजट। हमारे पास था कि होर्डिंग, हमारे ये था कि आज खरीदो तो नेक्स्ट जनरेशन उसको बरतेगी। सो समवेयर इट वाज राइट आल्सो। सो उसमें 100% कोई भी चीज़ सही गलत नहीं है, अगेन बैलेंसिंग है। You should have the exposure of there are some foreign brands which are very good, but they're very no in furniture ले लो, हर एक में ले लो, there are brands which are very good, but वो कितने जने अफोर्ड कर पाते हैं? अब आप लुक अलाइक है, you want to buy Ralph Lauren, you want to buy Fendi, you want to buy Paul Theroux, आप लुक अलाइक लेते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। The Indian design industry is facing a problem, especially the interior and the furniture business. They उनको आप रियल देसी घी दे रहे हो, वो कह रहे हैं जी हमें तो नकली घी, हाँ, एट द सेम प्राइस। उससे हेल्थ खराब हो रही है, उससे थॉट प्रोसेस खराब हो रहा है। आपका फर्नीचर भी तो बहुत बड़ा वास्तु का एलिमेंट है आपके घर में। पीपल डोंट रियलाइज दिस। इट्स एन एनर्जी सेंटर। व्हाट कलर यू यूज, मैंने स्टोन की बात करी, वो दीज आर ऑल एनर्जी सेंटर्स इन योर हाउस। एंड व्हाट काइंड ऑफ वुड यू आर यूजिंग? एब्सोल्युटली। आप एक बात बताओ, आज पीयू का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, हाई ग्लॉस, और आपके घर में एक न्यू बेबी बॉर्न हुआ। डू यू नो दैट दीज आर कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स? दे एवरी डे दे आर एमिटिंग केमिकल्स इन द एयर, और आपका न्यू बॉर्न वही केमिकल ब्रीथ कर कंज्यूम कर रहा है, और आप खुश हो रहे हो यार मैंने तो बहुत हाई ग्लॉस फिनिश लिया। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ पेट्रोकेमिकल होनी। फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं ना, प्रॉब्लम ये है अनइन्फॉर्म्ड है, इसकी नॉलेज नहीं है कहीं भी। सो दैट इज, अब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सो सारी चीज़ों तो मैं कर नहीं सकता। सो आई नीड पीपल, आई नीड यंगस्टर्स टू मेक दिस वायरल, एंड ट्रस्ट मी दिस वील मेक मोर मनी बाय गिविंग। आज अब ऑर्गेनिक कोई सब्जी दे रहे हो, वो 10x महंगी होती है नॉर्मल से। तो ऐसे ही आप अगर आप वो नॉलेज इम्पार्ट करोगे, आप कितने लोगों को सुधारोगे, यू विल मेक मिलियंस ऑल्सो। जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑल्सो इज अ बिजनेस। Do you think like if someone is buying a house worth 10 crore, where like what kind of furniture do they buy, and is the industry trend towards modular houseware or the luxury end? सी देखो, जो राजा है वो राजा ही रहेगा। हु कैन अफोर्ड विल ऑलवेज बाय द बेस्ट। इफ आई कैन अफोर्ड अ रोल्स रॉयस, आई विल बाय अ रोल्स रॉयस, आई विल नॉट सेटल फॉर लेस। तो जो हमारे तरह का क्लाइंट है हु वांट्स टॉप ऑफ द पिरामिड, दे विल कम टू अस। उनको वैल्यू पता है, क्योंकि वो भी बिजनेस हाउसेज हैं। वो अपने प्रोडक्ट में वो भी बेंचमार्क हाई अचीव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे रिस्पेक्ट। द प्रॉब्लम इज द न्यू रिच who become overnight rich, or who become made money in the real estate, yeah, or they have done the startup formula because things have come easy, so they don't value this. They work on the use and throw concept. So this is my experience, I can be wrong, but majorly yahi hai. So what do you think ki, like without spending a big buck on it, where should someone start In what context? in Vastu, and how, like what small changes they can make in their house where they are living? See, first is to first know yourself. First adopt the preventive way. आपको अपना स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, और आप जहाँ रह रहे हो उससे कोरिलेट करो। कैसे कोई चीज़, कैसे हल्की सी चीज़ चेंज करने से नहीं होती, वो मोमेंटरी होती है। अगर आपको काट के ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करना है, वो हल्का फुल्का मल्लम से नहीं ठीक हो सकती। हाँ, आपकी प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशंस स्टडी करके आप उसको इंटरप्रिटेशन कर लो और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन दे दो। इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो आर्किटेक्ट्स डिज़ाइनर्स हैं हमारे जैसे, दे शुड, दे, अब सपोज एक यू मेड मनी, यू मेड योर फर्स्ट 10 crores, यू गो टू अ आर्किटेक्ट, अपने घर बनाना है, डिज़ाइन करना है। somebody is made 100 crores, somebody is made 1000 crores, he wants to make a new factory, कोई होटल बनाना चाह रहा है, कोई टाउनशिप बनाना चाह रहा है। So when they come to people like us architects, it is our moral duty to guide them कि do things compliant.
कंप्लायंस में कोई कॉस्ट नहीं लगती, सिर्फ दिमाग लगता है। अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्री में आर्किटेक्ट्स हैं या और डिज़ाइनर्स, दे डोंट वांट टू मेक दैट एफर्ट। इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती अगर हमें वास्तु कंप्लायंट घर बनाना है। इट इज़ ओनली एक्स्ट्रा ब्रेन एंड मे बी सपोज द क्लाइंट, अब क्या होता है, बिल्डर होता है, वो कह रहा है यार मैं एक्स्ट्रा कैसे कवर कर लूँ, एक्स्ट्रा माल कैसे बेच लूँ, सुपर एरिया बढ़ा लूँ, कॉमन एरियाज को भी बढ़ा लूँ। हमें बस वो ध्यान रखना है। अल्टीमेटली आपको सपोज एक चीज़ से 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, आपको कंप्लायंस करके भी 100 रुपये अचीव हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं समझते ना, वो ग्रीड है। ये तो ग्रेड ए बिल्डर्स में हो गया। अब मैं सेकेंडरी होम की बात कर रहा हूँ। अगर एक सेकेंडरी मार्केट में जो पुराने घर बने हुए हैं, अब मुझे उसको दोबारा तोड़ के नहीं बना सकता मैं। बट एक्जिस्टिंग हाउस में क्या-क्या चेंजेस उसमें बेसिक रेमेडीज हैं डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। पर्सनल है तो अलग है, हेल्थ बेस्ड है तो अलग है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट टू बी प्रिवेंटिव एज़ यू सेड। सो प्रिवेंटिव, सी दैट विदाउट सीइंग द प्लेस वी कांट कमेंट। सो प्रिवेंटिव में ये होता है कि आप देखो, अगर अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एज इट इज़ ग्रोथ चार्ट पे होगा, तो वो बंदा आएगा विद अ डिफरेंट बेंट ऑफ माइंड टू अस। वो आएगा ही कि यार मैंने इसको तोड़ के बनाना है। या वो प्रॉब्लम में होगा तब तोड़ेगा, या वो ग्रोथ चार्ट पे होगा तब नहीं, तोड़ेगा। अब आपने बोला प्रिवेंटिव, एब्सोल्यूट प्रिवेंटिव टर्म्स है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसमें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। या बट उसमें देन आई कैन ओनली डायग्नोस इट वंस आई हैव द डाटा, इंडिविजुअल डाटा या हाउस का डाटा। अब क्या होता है, एक एक फैमिली है, वो ग्रो कर रही है उसी घर में या उसी ऑफिस में या उसी शॉप पे। दे डोंट रियलाइज कि आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, उससे उनको वो कहते हैं, बहुत सारे केसेस हैं मेरे पास आते हैं, यार हमारी फैक्ट्री तो 20 साल से अच्छी चल रही थी, सडनली क्यों खराब हो गई, सडनली प्रॉब्लम। देन वी रियलाइज कि आसपास में कोई न्यू इंडस्ट्री। क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? नेबरिंग फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने ही जगह पे, आपकी नीड बढ़ी, आपकी वेयर हाउसिंग कम हो गई, आपने छोटा सा ही बाहर कमरा बना दिया गलत डायरेक्शन में, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सी व्हेन द सपोज ये खराब, आप एक खराब वास्तु के घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में हो, उसकी प्रॉब्लम आपको तब आएगी जिस दिन आपकी इम्यूनिटी डिप करेगी। इट विल नॉट इफेक्ट यू। तो क्या होता है, वो हम उस फॉर्मूले पे चलते हैं, यार मैं 10 साल से यहाँ था, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे, स्पेशली द यंगर सेकंड जनरेशन ये बोलती है। सपोज एज अ किड यू टेल योर पेरेंट्स, यार हम तो यहीं से तो ग्रो हुए हैं, हमने यहीं से तो तुम्हें बड़ा करा है। हाँ, बहुत कॉमन है इंडियन हाउस। आज गलत कैसे हो गया? तो क्या होता है कि लाइफ में इम्यूनिटी हमेशा चेंज होती है। गलत चीज़ की आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम तब आती है जब वायरस घुसता है। वायरस कब घुसता है? जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है। द सेम वे, अगर आपका कंप्लायंट घर है या गुड एनर्जी बेस्ड घर है, या जो भी टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ करनी है, तो उसका इम्पैक्ट तभी आता है जब जब आपकी म, अपनी पर्सनल लेवल पे इम्यूनिटी चेंज होती है। हो सकता है इम्यूनिटी 10 साल बाद चेंज हो, उस दिन इम्पैक्ट आएगा। इफ़ यू आर स्ट्रांग, आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उसको इग्नोर कर दोगे, आप बोलोगे यार ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। वही प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियली बाद में आपके ऊपर आएगी। अगर उसमें कोई डिफेक्ट है, प्रॉब्लम आएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। व्हाट वी टीच इज हाउ टू लिव विद दैट प्रॉब्लम। मेरे से कोई मतलब अगर मेरा कोई एग्जिस्टिंग हाउस है तो मैं उसमें प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव वो देख के वी कैन टेल द सॉल्यूशन। देयर इज सॉल्यूशन, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। अब सपोज आप वहाँ रहते नहीं है, नाम, अच्छा फिर किसके घर पे नाम पे है प्रॉपर्टी, अच्छा, वो भी मैटर करता है। उसका इम्पैक्ट उस पर ज़्यादा आएगा। What age you are in, what zone do you stay in the house. So all these impact. आप जितना डिटेल जा सकते हो, इस बहुत डीप साइंस है। इतने सालों के बाद भी आई ओनली नो इवन नॉट इवन 0.01%। अच्छा, एंड द मेरे को इसमें और एक और प्रॉब्लम लगती है कि देयर आर नो सोर्सेज। मैं किस पे ट्रस्ट करके किससे सीखने जाऊँ अगर मेरे को इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो? सो उसमें तो देखो, आपने 30 इयर्स लगाए और आपने अपने करियर में पूरे ओवर द ईयर सीखा, बट मेरे को भी सीखना है अगर, तो मैं कैसे सीखूँ? सी देर आर गुड पीपल, देर आर गुड इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कैन यू नेम सम ऑफ देम फॉर ऑडियंस? No, that'll be unbiased because most of them are friends. So I can't pick one and not pick the other. So yeah, that I can share. And ऐसा कुछ नहीं है।
उनकी इंटेंशन एंड मेरा सजेशन ये है कोई भी ऐसी चीज़ करो फर्स्ट डू इट वन ऑन वन डोंट डू इट इन अ मास मार्केट फॉर्मूला because the energy transformation will not happen. Second, at least practice for 5 years before you actually start giving advice to somebody else. Don't you think there should be a regulatory body to just tell कि this person is certified or not? कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. Government or some external body, there should be someone. Because this will filter out all the forgery and scamster out of it. देखो उसके लिए कोई एफर्ट चाहिए ना. सी इसमें टाइम इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंस, गवर्नमेंट लाइजनिंग सब कुछ चाहिए. बट आप उसका इम्पैक्ट देखो कि कितना पैसा बचेगा लोगों का. वो तो हर चीज़ में बचेगा. ऐसे रियल एस्टेट में भी बचेगा, हर चीज़ में बचेगा. फैशन में बचेगा, फूड में बचेगा. लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स वी आर डूइंग इन फूड. यू नो you can you can do the food. You can do a high energy food. नहीं, I am not aware. Like I said, the clothing, you can do clothing as per the energy. You can do food as per your energy. आपकी अल्टीमेटली जो आपकी कुक है या खुद कर रहे हो या कुक कर रही है, अगर आपका राइट जोन में है तो एनर्जी उस जोन में जब कुकिंग होती है उसकी एनर्जी डिफरेंट लेवल की होती है. क्योंकि दैट इज माई कंजम्पशन. हाँ, तो आप खाना नहीं खा रहे, आप साथ में एनर्जी इनटेक भी कर रहे हो. सो दैट विल ऑलवेज क्रिएट अ बैलेंस इन योर बॉडी. अब इसको किसको नॉलेज है? आप जाके किचन डिज़ाइन वाले से किचन डिज़ाइन करवा लेते हो, वो कहीं पे भी कुछ लगा देता है एंड यू आर हैप्पी. सो आई एम नॉट सेइंग आई एम प्रो टेक्नोलॉजी, आई एम प्रो एक्सपेरिमेंटिंग, बट जो बीच का मिसिंग लिंक है, जो ये जॉब रोल ऑफ एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर है, ये टोटली chaos है इस इंडस्ट्री में एंड दैट्स व्हाई दे आर रूइनिंग. अब हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती है तो डॉक्टर्स का बिजनेस बढ़ता है. वो क्रिएट कहाँ से हो रही है? आपके घर से, आपकी बॉडी की इम्बैलेंस से. डू यू थिंक एवरीथिंग इज प्रिवेंटिव? टू अ मेजर एक्सटेंट, एक्सेप्ट फॉर एक्सीडेंट्स. That too can be prevented, but most of the things can be prevented. At least we can try to be. Okay. Right now, let's focus on being entrepreneurs, where identifying our skill sets and growing the creative part and making money out of it. Value addition के पैसे हैं. अगर मैं एप्पल का फ़ोन लेके एप्पल का फ़ोन बेच रहा हूँ तो उसमें आर्बिट्राज है. वैल्यू एडिशन तब है जब मैं उस पर कोई न्यू वैल्यू डाल रहा हूँ, कोई न्यू सॉफ्टवेयर डाल रहा हूँ या न्यू उसका मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ. देयर वेदर इट्स रियलिस्टिक, वेदर इट इज एवरीवेयर. वही खाना आपको एक रेस्टोरेंट में एक्स रेट पे मिलता है, वही थे. वैल्यू एडिशन है, प्रेजेंटेशन है, देन दी ऑरा यू क्रिएट. राइट. सो दिस फिलॉसफी वर्क्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इन ऑल इंडस्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड. थैंक यू ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए. अब आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है. नंबर 1, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना बेटर और वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे. नंबर 2, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस एपिसोड से आपको क्या सीखने के लिए मिला और अगला ऐसा कौन सा गेस्ट है जिसको आप हमारे चैनल पे देखना चाहोगे, ताकि हम उनसे और इंसाइटफुल बातें कर सकें जिससे कि आपका बेटर डिसीजन मेकिंग हो. नंबर 3, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन कीप वर्क इन प्रोग्रेस.